कोई बात नहीं। तो और कोई जिसे थोड़ा नॉलेज हो, थोड़ा आप शेयर करना चाहता So हो? basically, it is the next iteration of the World Wide Web, which is based on the blockchain technology, like decentralization, data ownership, data privacy, and all. Mm-hmm. Is really data private? Like everyone talks about data is private, privacy of data. Anyone? Roshan, Dhruv, any comments on that? डाटा जो है प्राइवेट नहीं पब्लिक होता है, लेकिन वो इनक्रिप्ट फॉर्म में होता है बहुत ज्यादा। एट द एंड वो होता तो सबके पास ही है। हाँ। ठीक है, चलो। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइस। Yes, sir. Okay, good. Actually, so let's start with the blockchain and smart contract development session. And it will be a too basic, too beginner friendly, to be honest. I'm not gonna give you DeFi. I'm not gonna give you multiple swap protocol and other things. It's just a basic thing where we will learn about Web 1, Web 2, Web 3, their consensus mechanisms, what is the nonce, what is how blockchain works, basically. And later on, we will discuss how we can write our code into the blockchain and what is exactly a blockchain. It's not about data, it's not about a thing. It's a let's continue. Okay. So here is I am host Kanishk Chaurasia, founder and CEO of Polycrypt, blockchain dev, AI/ML trainee, and a product guy also. So if you have any idea you want to validate, just ping me and I'll help you to validate the idea. So today's agenda is blockchain and Web3, wallets, what is Web2, Web3 architecture, and about the tech stack. If you need resources, I'll provide the resources also. So here's the thing. What is blockchain? So a simple terms, a decentralized database storing information in blocks rather than a traditional tables. So इससे क्या किसी को समझ में आया? What is it? Like क्या है ये? Database, blocks, traditional tables. What the three words signifies over here? Anyone just raise your hand because I want this to be a two-way communication, not a session thing. Here are three words, Uh, right? it is not controlled by a single entity. Okay. So like I'm asking about the blocks, I'm asking about the traditional tables and decentralized database. These are the three words. So what is signifies? No, no So issues. basically, the transactions are not stored in RDBMS or any type of other storage. Here Mm-hmm. in every block, there are a certain number of transactions and a hash value which is created from those transactions that define the block uniquely. Okay. सो इसको थोड़ा सा ना और इजी करते हैं। अच्छा मेरा ये विजिबल लाइक एक नोट पैड। Yes, sir. ओके। तो देखो हम्म, होता क्या है अभी, क्या होता है जो तुम्हारा डेटाबेस से होता है ना, RDBMS। ओके, RDBMS। ठीक है, ये क्या होता है RDBMS का फुल फॉर्म पता है किसी को? सारे यहाँ पे वो हैं। एनीवन? व्हाट इज RDBMS? Relational database management system. एंड नॉन रिलेशनल का कोई एग्जांपल? MongoDB. यप। अरे यार, MongoDB। सो MongoDB क्या है? Document based database. या MongoDB इज डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। ओके। तो अब ये जो डेटाबेस हैं ये होते हैं आपके सिंगल सर्वर पे होस्टेड, राइट? सिंगल सर्वर पे। एंड जो हमारा ब्लॉकचेन होता है वो भी हमारा क्या होता है, डेटाबेस ही होता है। ठीक है, ब्लॉकचेन भी डेटाबेस ही है। बट वो जैसे यहाँ पे टेबल्स में हमारा डेटा स्टोर होता है ना, टपल्स में। लाइक ये टेबल्स हो गए तुम्हारी, ये सेल्स हो गए, फील्ड हो गए तुम्हारे, एंड टेबल हो गए। तो ये सारा तुम्हारा बना एंड तुमने यहाँ पे कुछ फील्ड डिक्लेयर करे, तुमने वैल्यूज डाली, एंड दिस इज द टेबल ऑफ योर्स। ठीक है। अब ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन में वर्क टेबल्स की तरह ही करती है, बट यहाँ पे होता है ब्लॉक्स। एंड ये ब्लॉक्स में होता है डेटा, इनसाइड ऑफ द ब्लॉक्स इनके अंदर होता है डेटा। ठीक है।
अरे किसी को पता है कि हाउ मेनी एमबीज वी कैन स्टोर इन अ ब्लॉक? एक ब्लॉक में हम कितना एमबी स्टोर कर सकते हैं? 1 MB. हाउ मच? 1 MB or 100 MB, if I'm not wrong. One out of the two. No, no, no. Both are incorrect. We can maximize 2 MB data. 2 MB is the maximum. ठीक है। बाद में कंप्रेशन और उसके साथ लाइक जो आपका लाइक उसको ऑप्टिमाइज करा, तो लोग उसमें जीबीज ऑफ डेटा, मीडिया नोड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑन चेन ऑफ चेन, वो अलग मेथोडोलॉजीज में इसको ऐड कर देते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या होता है? सिंपल है, आपका जो डेटाबेस है, थोड़ा सा डेटा आपने एक ब्लॉक में डाला मैक्स, उसको एक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, देन तीसरे ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, तो ये एक चेन चलती चली जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। अब मैं इसी को अगर एक और तरीके से समझाऊं, तो यहाँ पे जैसे बोला है ना, डेटा पे स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन ब्लॉक्स, तो अभी क्या है, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, सिंगल क्लाउड बोल लो, ठीक है। सिंगल क्लाउड में तुम्हारा डेटा पे स्टोर हो रहा है, तो इसलिए डिसेंट्रलाइज नहीं है। अब मैं सेम कॉपी क्या करता हूँ, सेम कॉपी मैंने अपने सर्वर पे रखी है, सेम कॉपी मैंने लेट सपोज नंदिनी के साथ शेयर कर दी, सेम कॉपी मैंने एक काम करा कि मैंने अनुषी के साथ शेयर कर दी, सेम मैंने मेधांश के साथ शेयर कर दी। तो अब ये लीनियर वे में तो हो गई। अब क्या है, इसको सिक्योर बनाने के लिए, ये नंदिनी है, ये अनुश्री है, ये मेधांश है, और ये मैं हूँ कनिष्क। अब मैंने इनके साथ शेयर शेयर करा, अब मैं डेटा चेंज करूंगा अपने में, तो होप सो इनके में चेंज नहीं होगा, इनके में चेंज नहीं होगा, इनके में चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट अगर मैं इसे क्रॉस कनेक्शन कर दूं लाइक दिस, ठीक है, तो अब इससे क्या फायदा हो गया कि अब जब भी मेरे को मेरा डेटा वैलिडेट करना है, तो चार लोगों के पास अगर सेम डेटा है, तो मेरा डेटा जो होगा इनवैलिडेट हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी के पास जो डेटा है वही माना जाता है, राइट। तो दिस इज हाउ वी वर्क इन अ डिसेंट्रलाइज मैनर, कि जो आप लोग कहते हो ना कि ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, एंड क्या इम्यूटेबल है, और क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड है। तो दिस इज द मैनर। अगर मैं कहूँ किसी को ब्लॉकचेन समझानी है, वो भी ऐसे बंदे को जिससे पता ही नहीं ब्लॉकचेन होता क्या है, तो आप कैसे समझाओगे? कोई आइडिया किसी के पास? एक बंदा है, उसको ब्लॉकचेन सिखानी है, लेट्स सपोज रिक्शे वाला है, उसको तुम्हें ब्लॉकचेन समझानी है, और उसको ये सब समझाना है, लाइक ट्रांसपेरेंसी, ओनरशिप, ओके, एंड इम्यूटेबिलिटी। कैसे समझाओगे? कोई आइडिया? डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ। ना, डेली लाइफ एग्जाम्पल से, या मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि यार डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको भी याद रहे जिंदगी भर। कोई एग्जाम्पल है किसी के पास? प्लीज एटलीस्ट यार, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा इसे पजल के सेशन हो गेम जाए। से समझा सकते हैं। कैसे? पजल के गेम से समझा सकते हैं। ओके, मेरे को समझाइए। मतलब पजल में क्या समझाओगे? एक जैसे रिक्शे वाले को क्या बोलोगे, पजल लो आप, तेरा पजल। उसको एक दूसरे से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, बट कनेक्ट, और फिर एट द जिसके एट द पास एंड, मेजोरिटी होगा। सी, अगर आप पजल्स की बात कर रहे हो, ये आपका पजल हो गया, राइट। ये इससे जॉइंट हो गया, ये यहाँ से जॉइंट हो गया, तो ये तो एक वो डेटा हो गया ना जो आपको ब्रेक डाउन था, आपने एक साथ कर दिया, वो एक साथ आ गया। ये तो वो चीज हो गई। इसको आप कैसे डिसेंट्रलाइज कैसे करोगे इसको? चलो मैं देता हूँ एक एग्जाम्पल, ठीक है। रिक्शा वाले को बोल सकते हैं कि यहाँ पे बैंक नहीं है और हाँ, सबका हिसाब सबके पास है। सबका पैसा, तो कल को तो रिक्शे वाला मन में लालच आ गया कि मैं भी अपना पैसा बनाऊंगा, मैं भी लॉन्च करूंगा, तब? और पैसा नहीं सर, हिसाब हिसाब। अरे हिसाब, ओके। देखो, हाँ। बट उसमें भी ना लिटरली ऊपर ऊपर से नहीं समझ में आएगा ना, थोड़ा सा डिटेल्स में भी चाहिए होता है कभी कभी। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और जस्ट मेरे को बताओ कि ये कैसा एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल है आपका, पहला एग्जांपल है आपका व्हाट्सएप। सभी ने यूज किया व्हाट्सएप? यस सर। यस। ठीक है। अब व्हाट्सएप में क्या करते हैं आजकल बच्चे या एवरीवन, कि मेरे को कोई फोटो स्टोर करनी है, पर्सनल पे मैं भेज देता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा ही नंबर है +91 समथिंग, और मैं अपने आप को सेल्फ सेंड कर देता हूँ। ये करते हैं, यस। ठीक है। Yes, sir. तो उसमें क्या होता है कि जो आपका डेटा है वो आपके पास आ गया। लेट सपोज मेरी एक इमेज थी जो मैं पार्टी में गया था, वो मैंने इमेज ली,
और मैंने वहां पर डाल दिया इमेज, ठीक है। मैंने ऐसे ही +7 इमेज डाल दी। अब मेरा, ठीक है, तो ये डेटा मेरे पास तो सिंगल कॉपी मेरे पास आ गई। दैट इज द वेब टू पार्ट। मेरा डेटा मैं ऑन कर रहा हूँ और मैंने अपने सर्वर पर डाल दी। कल को क्या हुआ, मेरा फोन गया स्टोल, चोरी हो गया, ठीक है। ओके। तो मेरा डेटा क्या गया, गायब। डेटा भी चोरी हो गया मेरा, राइट। अब उसी जगह मैं क्या करता, मैं एक ग्रुप बनाता मेधांश के साथ, ठीक है। मेरा एक ग्रुप है, मैं हूँ, मेधांश है एक ग्रुप में, और एक नंदनी भी है, तो हम तीनों का एक ग्रुप हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने फोटो डाल दी हमारे ग्रुप में, ठीक है। अब इस ग्रुप में मैं डालते ही मेरा क्या फायदा हो गया, क्योंकि मेरे जो डेटा की जो कॉपी थी वो एक नंदनी के पास भी चली गई, एक मेधांश के पास चली गई, ठीक है। तो मेरा डेटा हो गया सिक्योर। सिक्योर कैसे, कि यार जो मेरा डेटा था इन दोनों के पास एक एक कॉपी है, तो कल को मैं अगर कुछ भी चेंज करूंगा तो ये दोनों देख पाएंगे, ठीक है। मैं डिलीट करूंगा, इन दोनों को पता चल जाएगा। मैं कुछ भी करूंगा उस डेटा के साथ, इन लोगों को पता रहेगा। बट ये लोग चेंज नहीं कर सकते। मीन्स मेरा जो फोटोज या मेरा जो भी डेटा था वो क्या बन गया, इम्यूटेबल। मतलब कोई थर्ड पर्सन आके मेरा कोई डेटा चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ, उससे मेरा क्या डेटा बन गया, ट्रांसपेरेंट। और भैया मेरा फोन खो गया, कल को मेरे को वापस से बैकअप चाहिए, मैं इन दोनों से तो एक एक कॉपी, इन दोनों के पास तो एक एक कॉपी है ही, मैं इनसे रिट्रीव कर सकता हूँ। तो मेरा क्या डेटा हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड। किसी को कोई डाउट है? नो सर। हम्म। नो सर। एग्जाम्पल कैसा लगा व्हाट्सएप वाला? अच्छा था। अच्छा बहुत था। अच्छा था। हाँ, तो यही है कि देखो ना, कभी भी रिक्शे वाले को अगर तुम्हें वेब3 पढ़ाना है, उसको यही बोलो कि भाई तुम्हारा डेटा खो सकता है, तुमने ऐसे करा तो तुम्हारा डेटा कभी नहीं खोएगा। तो यही हम लोग वेब3 में करते हैं, कि ये तुम्हारा जो ट्रांजेक्शन है, जो भी रिकॉर्ड्स है, वो हम लोग सभी को एक एक कॉपी दे देते हैं, वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में। और वो डेटा कभी खोएगा नहीं, कभी वो चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो? तो दैट इज द थिंग, दैट्स हाउ वेब3 एंड ब्लॉकचेन वर्क्स। तो आई होप ब्लॉकचेन में अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा इन फ्यूचर, ठीक है। अब ब्लॉकचेन से पहले हम आते हैं, लिंक लिस्ट किसने किसने पढ़ी है ये बताओ। लिंक लिस्ट, जस्ट रेज योर हैंड सर गाइस। हम्म। मैंने पढ़ी है। कितनी होती है लिंक लिस्ट? सिंगली डबली और दोनों में सर्कुलर एंड लीनियर, तो मतलब टोटल 6। 4? टोटल 6 हो गई ना। टोटल सिंगली 6 कैसे हो गई? सिंगली लीनियर, डबली सर्कुलर, डबली लीनियर, डबली सर्कुलर। वेट वेट वेट, थोड़ा धीरे धीरे। सर पहले आएगा सिंगली सर्कुलर और सिंगली लीनियर। सिंगल सर्कुलर और सिंगली लीनियर। लीनियर, ठीक है। और फिर डबली सर्कुलर और डबली लीनियर। 4 होगी, सॉरी 6 नहीं। डबली, ओके, सर्कुलर, और डबली लीनियर। लीनियर। ओके, तो अभी आपने वो कैसे बोला था फिर 6? नहीं यार सर, वो गलत निकल गया मुंह से। 4 ओके। बोलना है तो। एनीवन एल्स, कोई और बोलेगा? इसके अलावा कोई और तो नहीं होती? नो सर। चलो ठीक। तो लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टीज याद है किसी को? लाइक आई होप सो कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ही बच्चा हो यहाँ पे, तो मेरे को लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टीज बताए। तो तो जितना, बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक जो ओके, फर्स्ट पार्ट में डेटा स्टोर होता है, सेकंड पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस और या लिंक स्टोर होता है basically। डाटा स्टोर होता है। जो नेक्स्ट उसको नोड को पॉइंट कर रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है, एड्रेस? हाँ, जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। ठीक है, एड्रेस हो गया मान लिया। बट ये तो डेटा हो गया, एड्रेस हो गया, ये कौन सा नोड हुआ फिर, जिसमें 3 होते हैं? नेक्स्ट एंड प्रीवियस सर। नेक्स्ट नोड एंड प्रीवियस डाटा। हाँ, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पहले, यहाँ पे कौन सा आएगा, नेक्स्ट आएगा, प्रीवियस आएगा? प्रीवियस। यहाँ पे प्रीवियस आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेटा आएगा, राइट। ये हो गया आपका हेड नोड,
और ये हो गया आपका नोड प्लस वन, हेड प्लस वन, यही तो ये एड्रेस आपका इससे कनेक्टेड होता है। दैट इज द थिंग गाइस, यस Yes, और sir. नो? Yes. ओके, देखो इंटरैक्टिव रखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो देखो डेटा हो गया, नेक्स्ट नोड हो गया, तो सेम चीज जो लिंक लिस्ट होती है ना, वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है ब्लॉकचेन के अंदर। कैसे? देखो ब्लॉकचेन में जो तुम्हारा हेड नोड होता है ना, हेड नोड, उसको कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। ठीक है, उसका भी एक इंडेक्स होता है। उसमें बस प्रीवियस हैश नहीं होता, मतलब कोई पहले का एड्रेस नहीं होता, उसमें करंट हैश होता है, यानी कि हैश इज द डेटा ओनली। ठीक है, एंड डेटा होता है यहाँ पे। मैं इसको तुम्हें एक एग्जांपल से और अच्छे से समझाता हूँ। दैट इज अ थिंग। 25 ब्लू एडवेंचर 1200 रुपए में। भाई ये सब है क्या? वेल, जो ये यूजर है ऑर्डर करने की वो कोशिश की है, बट अचानक से उनके ऑर्डर को जस्ट रिमूव हिम। देखो, अभी हम उधर जाएंगे, बट उससे पहले तुम्हारा हैश का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। एंड तुम्हारा ब्लॉक क्या होता है, एग्जैक्ट ब्लॉक कैसे दिखता है, उसका क्लियर करते हैं। तो एनीवन नोज अबाउट द SHA 256? व्हाट इज SHA? Secured hash algorithm. What it does? It turns the given data, which can be of any size or length, into a fixed length data, which is unique and universal for every single unique input. या तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कनिष्क, तो मैं कुछ भी लिख दूँ अनटिफाइंड, हमेशा का डेटा रहेगा सेम लेंथ का रहेगा, जैसा कि व्हाट्स योर नेम, ध्यान नहीं दिया था। Dhruv. ओके, ध्रुव। तो जैसा भी ध्रुव ने कहा कि कुछ भी लिख दो आप, मतलब कुछ भी लिख दो, दुनिया भर का सारा डेटा डाल दो यहाँ पे, वो एक किस में आ जाएगा, एक फिक्स्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में आ जाएगा। एंड ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है हैश की, कितने बिट की होती है? एनी आइडिया? 256. 256। देखो, जो हमारा 256 है, तो 256 बिट की होती है, 64 लेंगे 64 बिट की आएगी, 512 लेंगे तो 512 का आएगा। मैक्सिमम जो है 512 है, बट मोस्ट ऑफ द ब्लॉकचेन्स में जो यूज होता है वो है 256। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो ये जो है आपका, ये जो कन्वर्टिंग है, दैट इज अ हैशिंग। ठीक है, ये हैशिंग पढ़ा, हैशिंग, व्हाट इज हैशिंग? मतलब लिंक, ये भी एक आपका डेटा स्ट्रक्चर में ही आता है। व्हाट इज हैशिंग, याद है किसी को? Hashing is associating some data to a unique identifier. या तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है कि हमारा जो SHA 256 है, वो भी एक यूनिक आइडेंटिफायर में कन्वर्ट कर रहा है हमारे डेटा को। ठीक है, अब यही डेटा हमारा ब्लॉक्स में जाता है प्रोसेस होके। और ब्लॉक्स में कैसे जाता है डेटा, वो ऐसे जाता है। पहला ब्लॉक है, ठीक है, तो उसका इंडेक्स 1 हो गया, तुम्हारा नॉन्स हो गया एक। ठीक है, नॉन्स क्या होता है पता है किसी को? Number What is it? generated only once. हम्म Number generated only once. या सो नॉन्स में क्या होता है कि आपका जो भी डेटा है, वो पहले एक ही बार जनरेट होगा और वो यूनिक ही होगा। ठीक है, और वो एक ही बार यूज हो सकता है, ये नहीं कि मल्टीपल टाइम्स आप सेम ही नॉन्स को लेके आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, इट्स अ यूनिक इंडेक्स फॉर द ब्लॉक एक्चुअली, एंड इट हैव द डेटा, मीन्स हम जो भी डेटा लिखेंगे वो, एंड इट विल हैव द हैश। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जब भी अगर मैं इसमें डेटा चेंज कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने अपना ही नाम लिखा, तो यहाँ पे हैश चेंज हो रहा है। अब हैश चेंज हो रहा है, तो ये ब्लॉक हो गया रेड, मीन्स ब्लॉक का डेटा हो गया भैया चेंज। तो ब्लॉक का डेटा माइन किया जाता है। अब जैसे मैं माइनिंग पे क्लिक करूंगा, अब ये हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि ये डेटा क्या होगा ब्लॉकचेन में एज अ ब्लॉक स्टोर हो गया ब्लॉकचेन के अंदर। तो अगर मैं इसको कट कर दूं, वापस से रेड। ठीक है, तो ये दैट्स वाई ब्लॉकचेन में जब भी डेटा स्टोर होता है तो इम्यूटेबल कहलाया जाता है कि भाई ये चेंज, अगर मैं हैश चेंज कर दूंगा, जरा सा भी चेंज करा, मैं के की जगह मैं बिगर के ले लूंगा, तो भी डेटा देखो कितने कितना ज्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, दैट इज द थिंग। ओके, किसी को मतलब पता है स्काई वैल्यू क्या होता है? स्काई, ASCII, व्हाट इज स्काई? American Standard Code for Information Interchange. या तो ये जो स्काई वैल्यूज होती है ना कीबोर्ड्स की, ये भी बहुत ज्यादा सिग्निफाइज करती है तुम्हारा हैशिंग एल्गोरिदम को। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कनिष्क ही लिख रहा हूँ, स्मॉल में लिख रहा हूँ, तो वैलिड है।
और मैं अगर एक भी लेटर बड़े में लिख दूं तो इनवैलिड है। तो दैट इज ड्यू टू द स्काई वैल्यू। यहाँ पे आपका अपर केस और वो नहीं चेक चेक होता, यहाँ पे सीधा स्काई वैल्यू चेक होती है। अगर मैं स्पेस भी डाल रहा हूँ तो भी डेटा चेंज है। दैट इज द थिंग, ठीक है। दैट इज ब्लॉक। अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूँ तो ब्लॉक्स में क्या, ब्लॉकचेन में क्या होता है, सिंपल, कि आपके जो ब्लॉक्स, एक ब्लॉक बनाया आपने, अब ये ब्लॉक आपका अगले ब्लॉक से कनेक्टेड है, और ये वाला ब्लॉक आपका अलग अगले वाले से कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन। अब ये ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है, दिखती कैसी है, ये मैंने ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे, ठीक है। लेट्स गो टू ब्लॉकचेन। 1 2 3, ठीक है। नॉन्स में ये अलग नॉन्स वैल्यू है, ये अलग नॉन्स वैल्यू है, ये अलग नॉन्स वैल्यू है। यहाँ पे 5 है। अब 5 में से ये सारा है लीनियर डेटा, कि मतलब यहाँ पे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड है, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, देखो, जो हमारा जो जेनेसिस ब्लॉक होता है, यानी कि ब्लॉक नंबर 1, ऑलवेज कॉल्ड जेनेसिस ब्लॉक, और उसका जो एड्रेस होता है वो हमेशा 0 से शुरू होता है, ठीक है, इन एनी ब्लॉक चेन। उसका जो अगला डेटा है वो है हैशिंग, मतलब हैश होता है इस डेटा का, जो कि एम्प्टी एम्प्टी डेटा भी हैश है, ठीक है। सेम जो यहाँ पे जो हैश है प्रीवियस, ये वाला हैश अगले वाले नोड के लिए एज अ प्रीवियस हैश वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डेटा है उसका हैश अगले वाले के लिए प्रीवियस हैश का वर्क करेगा। मतलब यहाँ पे डबल सिक्योरिटी है। एक तो लिंक है ये इसके एड्रेसेस से, दूसरा ये लिंक है डेटा से, डेटा के हैश से, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया? सर एक बार नो सर। मतलब कैसे ये लोग कैसे लिंक है ये? क्या है ध्रुव? सर ये लिंक कैसे का वापस बताने के बाद थोड़ी आवाज देखो धीमी देखो, हुई। ये जो हैश है यहाँ पे जैसे मैंने अभी लिखा फाइनेंस, ठीक है, एक सेकंड, ये लिख देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाले एड्रेस है 999 करके, ये वाला हैश इससे कनेक्टेड है 99 से, और ये वाला जो है D0 डी से D0 D, तो ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। एज अ जैसे तुम्हारा लिंक लिस्ट में होता है, ये रहा, आ गया, जैसे लिंक लिस्ट में नहीं होता, ये रहा, कि डेटा हो गया, एड्रेस हो गया, प्रीवियस प्रीवियस एड्रेस हो गया, उसका डेटा नेक्स्ट एड्रेस, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है तुम्हारा ब्लॉकचेन में। दैट इज द थिंग। अब सर किसी का भी एक का चेंज करे तो आगे का चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक सारा सबका। हाँ, मतलब अगर अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी एक चेन है, ठीक है, और इसमें मैंने एक डेटा लिया, वो चेंज कर दिया, यहाँ तक तो डेटा सेम था, इसके बाद ही कोई चेंज हुआ है और इस पूरी चेन हो गई रेड, क्योंकि डेटा क्या हुआ, मिसमैच हो गया, ठीक है। तो इसमें टर्मिनोलॉजी होती है, ये जो मिसमैच वाला चीज है, और ये इसमें ना एक हार्ड फोर्क होती है ब्लॉकचेन को ना, कुछ लोग बोलते हैं हार्ड फोर्क, ब्लॉकचेन हार्ड फोर्क। फोर्किंग पता है किसी को, व्हाट इज फोर्किंग? यस सर, जब भी सर्टेन जो भी ब्लॉक्स में जो ब्लॉक के ओनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ अगर डिसाइड करते हैं कि ब्लॉक का साइज चेंज होना चाहिए एंड कुछ डिसाइड करते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो वो जो चेन होती है वो दो में डिवाइड हो जाती है। उस प्रोसेस को फोर्किंग कहते हैं। यार इस प्रोसेस को फोर्किंग तो नहीं कहते। ओके, अगर ओके। मैं देखो, अगर मैं गिटहब पे जाऊं, ठीक है, फिर तो मैं यहाँ पे आया और मैंने लेट सपोज कोई सी भी एक अनडिसेंट सी वेबसाइट ले ली, कौन सी लूँ? ओके, मैंने ये वाली ले ली, और मैं इसको जाके यहाँ पे फोर्क कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसकी ब्लॉकचेन में वैलिडेटर बन के वो सारी चीजें हो रही है? दिस इज कॉल्ड फोर्क। मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो फोर्किंग होगी, एक नहीं? डुप्लीकेट कॉपी बनाना। यस, सेम जो कोड बेस चला आ रहा है उसका एक हम लोग क्या बनाते हैं, डुप्लीकेट कॉपी। तो ब्लॉकचेन में अब जैसे इथीरियम है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ हाथ के हाथ। अ, ये रहा। अब मैं इसमें गया, इथी इथेरियम, तो इथेरियम का ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल ब्लॉकचेन का कोड है इथेरियम का, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कितना फर्क है, 20.2K, मतलब इतनी सारी ब्लॉकचेन्स लोगों ने बनाने का ट्राई किया, पढ़ने का ट्राई किया, बिलियंस ऑफ लोग हैं, बट हजारों में ही हमारी ब्लॉकचेन है, समझ रहे हो? तो अब ये जो डेटा है, अगर मैं कहता हूँ मैंने आज फोर्क करा कनिष्क ने, ठीक है,
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डेटा जो अभी चला आ रहा था नोड्स का, ठीक है, वो सेम ही आएगा ना इसमें भी, हमारी वाले में भी। अब हमारे वैलिडेटर नोड है, वो सब कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को अलग चाहिए। सब लोगों ने, मैंने एक डेटा दिया जो मैंने यहाँ पे डेटा किया, ठीक है। अब सब लोगों ने कहा कि चलो मैं कर रहा हूँ माइन, मतलब मैंने कर दिया माइन। अब माइन मैंने किया, वैलिडेट सबने कर दिया, ठीक है। अब वो डेटा हो गया अप्रूव, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हार्ड फोर्क, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट भी है इथेरियम का, ठीक है, ETHEREUM, इथेरियम क्लासिक वर्सेस इथेरियम। इथेरियम क्लासिक है, वो ओरिजिनल इथेरियम है, एंड इथेरियम जो नई वाली है वो हार्ड फोक्ड है, ठीक है। और ये हुआ था एक छोटे से ग्लिच की वजह से। देख लो, इसको कभी पढ़ना तुम लोग, मैं डाल दे रहा हूँ चैट में, मेरे चैट सेक्शन, चैट सेक्शन कहाँ पे है यार इसमें, ठीक, आई डोंट नो, मेरे को नहीं मिल रहा, बट हाँ, ये डाला crypto.com पे, तुमको ये मिल जाएगा, ठीक है। इथेरियम वर्सेस इथेरियम क्लासिक क्या है, तो वहाँ पे इथेरियम नरेश, क्लासिक, हाँ जो लिंक है इसमें ग्रुप पे डाल देना, यूर इन द ग्रुप ना, तो जीडीजी के वो जो ओके, ग्रुप है उसी पे डाल दे। ठीक है ठीक है, मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, नो इश्यूज, ठीक है। तो इससे तुम लोगों को पता चल जाएगा कि फोर्किंग क्या होती है, डाओ क्यों बनाए गए, एंड व्हाट इज द डाओ वर्किंग, उन्हें क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। ये सब क्यों हुआ, कैसा अटैक था, कितना, ये देखो ना, stolen funds, blah, new fork was branded as Ethereum by trademark owning Ethereum Foundation, and non-fork, original non-fork called rebranded Ethereum Classic after the hard fork, ठीक है। तो ये पढ़ना तुम लोगों को थोड़ा सा और अच्छा से समझ में आएगा कि कब क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कोई सप्लाई की लिमिट नहीं थी, यहाँ पे सप्लाई की लिमिट हो गई, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है। तो ये वाली चीज है। ये स्लैशिंग भी एक बहुत अच्छी चीज होती है, तो ये भी बताएंगे अभी हम आपको। तो ये समझ में आ गया यहाँ पे कि वैलिडेशन लोग जब करते हैं तो क्या होता है, अच्छे लेवल पे करते हैं, ठीक है। पूरी पूरी ब्लॉकचेन का नाश कैसे मारा जा सकता है अगर वो वैलिडेशन वाले पे है तो, ठीक है। अब मैंने ये वाली भी माइन कर दी, मैंने ये वाला भी डेटा माइन कर दिया, मैंने ये वाला डेटा भी माइन कर दिया। अब ये ब्लॉकचेन हो गई नई, अब किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक है। बट पता कैसे चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा क्योंकि ये अभी मेरे पास था नोड पूरा, ये जो ब्लॉक्स थे ये मेरे पास थे। बट अभी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं लाइक दिस, एक मेरे पास है, एक अगेन मेधांश के पास है, एक लेट सपोज ध्रुव के पास है, ठीक है। अब हम है पीयर, मैं हूं पीयर ए, पीयर बी हमारा मेधांश, पीयर सी हमारा ध्रुव। अगर मैं अपने डेटा में चेंज करता हूँ कुछ भी, ठीक है, देखो मैंने अपने डेटा में चेंज किया ए, इससे इन दोनों को फर्क नहीं पड़ा। बट अगर ये रियल ब्लॉकचेन होती और मैंने यहाँ पे दो पेयर में चेंज कर दिया, तो ये दो पेयर का चेंज और माइन करने के बाद तो ये वाला पूरा जो पेयर सी है वो रेड हो जाता, वो इनवैलिडेट हो जाता। क्योंकि ब्लॉकचेन में एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड, हैकिंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज द 51% हमें हैक करना पड़ता है, ठीक है। 51% अगर हमने पूरा नेटवर्क का नोड डेटा चेंज कर दिया, वो भी एक बार में, तो हम लोग पूरी ब्लॉकचेन का डेटा चेंज कर सकते हैं विद इन दिस थिंग, दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट। बट फ्यू लाइक इसमें वर्नेबिलिटीज भी थी, एंड सिंस कंप्यूटर्स आर फास्टिंग, तो अब जो ये नया सॉल्यूशन है वो है आपका 67% का, कि आपके नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं, नोड्स में जो डेटा है, उसमें 67% डेटा में ही आपको चेंज करना है, नोट करना पड़ेगा, तभी आपका जो ब्लॉकचेन का जो डेटा है वो चेंज होगा, वो मॉडिफाई होगा। ब्लॉकचेन इज मॉडिफाइबल बट ऑन सम सर्टेन कंडीशंस। यहाँ तक किसी को पता था या सबके लिए सब कुछ न्यू है सर गाइस? मेल है सब कुछ, यूएस क्या क्या मेल में नहीं है सब कुछ, पहली सब बार कुछ कर रहा न्यू हूँ। है, चलो हाँ ठीक है। अब इसी में क्या होता है ना, जब हमारा ब्लॉकचेन, देखो ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स पढ़ लिए हमने, ब्लॉकचेन पढ़ ली हमने, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूटेड मैकेनिज्म कैसा वर्क करता है वो पढ़ लिया। अब आते हैं वापस से यार पीपीटी पे, ठीक है, क्योंकि पीपीटी में भी ये जरूरी था थोड़ा सा। अब इसमें ये वाली चीज मैंने बिल्कुल तरीके से बताई है कि जेनेसिस ब्लॉक कैसा दिखता है, ब्लॉक जीरो,
उसमें ये कहाँ पे हैश होता है, डेटा कैसा होता है, प्रॉपर आपके पास ये रहा डेमो। ठीक है, कभी भी आपको कॉन्सेप्चुलाइज करना हो कि भाई ये मेरा ब्लॉक है, ये मेरा नेटवर्क है, मेरे को पांचों को एक साथ रखना है, मेरे को सर्कुलर में बनाना है, या मेरे को और एडिशनल सिक्योरिटी देनी है, तो दीज आर द थिंग्स विच इज यूज टू बिल्ड द आर्किटेक्चर ऑफ द ब्लॉकचेन। ठीक है, आर्किटेक्चर लेवल पे यही सारी चीजें काम आती है, तुम्हारा लिंक लिस्ट, तुम्हारा सी, जो कोर ब्लॉकचेन लिखी गई है वो आज भी लोग सी प्लस प्लस वाले ही डेवलपर ढूंढ रहे हैं। स्टिल आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर सी प्लस प्लस डेवलपर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंसेंसस मैकेनिज्म पे। ठीक है, व्हाट इज कंसेंसस मैकेनिज्म? किसी को पता है कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है? नहीं सर। बेसिक एक हम्म? डिजिटल या फिर वर्चुअल अग्रीमेंट होता है हाँ, जो कोड में एग्रीमेंट, लिखा जाता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है विद टाइम। राइट। तो कंसेंसस क्या हो गया, एक रूल बुक मान लेते हैं इसको। क्या है ये? रूल बुक। अब ये रूल बुक क्या कहती है? रूल बुक में जो रूल हमने लिख दिए कि भैया हमारी ब्लॉकचेन में इतने वैलिडेटर नोड होंगे, हमारा प्रायोरिटी पूल ऐसा होगा, हम लोग इतना रिवॉर्ड देंगे, हम लोग उतना रिवॉर्ड देंगे, हम लोग अब कम करेंगे, ये सारी चीजें होती है हमारी रूल बुक में। ये रूल बुक हमारा जेनेसिस और कंसेंसस के अंदर लिखा होता है। लेट्स सपोज जो हमारा बिटकॉइन है, बिटकॉइन का एक बहुत अच्छा रूल है, सभी को पता होगा, कि हर 4 साल में, एवरी 4 years, वो क्या करता है? कौन सा इवेंट आता है ब्लॉक बिटकॉइन में? एनी आइडिया किसी को? देखो, हर 4 साल में बिटकॉइन के अंदर आता है हाल्विंग हाल्फिंग। इवेंट और हाफिंग इवेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है हाफिंग इवेंट में, जो तुम्हारा रिवॉर्ड है वो क्या होता है? हाफ। और जो तुम्हारा प्रॉब्लम का वो जो होता है, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी, वो क्या हो जाती है? डबल। तो ये हर 4 साल में कभी भी तुम लोग देखना कि हर 4 साल में बिटकॉइन के प्राइस अचानक से कैसे आसमान छूने लगते हैं। तो दिस इज द रीजन, क्योंकि लिमिटेड है बिटकॉइन। ठीक है, एंड उन्हें माइन करना पड़ता है, और माइनिंग के लिए जो मशीन लगती है, पहले सबसे पहले मिलते थे 50, उसके बाद हुए 32, उसके बाद समथिंग समथिंग कर करके ये यहाँ पे आ गए हैं कि समवेयर 6 मिलते हैं अब। ठीक है, तो दिस इज अ थिंग। एक सेकंड। ठीक। गणेश, हाँ ये लास्ट साइकिल तक मिलते थे, अभी जस्ट हाफिंग हुआ तो उसका 3.125 है आई गेस। हाँ, तेरा तो मैंने कहा ट्रेड। ना 6 पॉइंट लास्ट था 2020 का, हाँ इस बार का 3 पॉइंट समथिंग हो गया। तो वही तो हाँ, मैंने अभी थ्री बोला। पॉइंट वन टू फाइव हो गया समथिंग। हाँ, तो 3.125 अभी है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट इटरेशन जब होगी वो होगी 2028 में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हाफ। ठीक है, उसके बाद 2032 में फिर हाफ, यानी कि हाँ, ऐसे करके बहुत रिवॉर्ड हो जाएगा, एक टाइम पे 0, और लास्ट ब्लॉक जिस दिन माइन होगा उस दिन पूरे दुनिया में बांटेंगे लड्डू। सीधी साफ बात है। ठीक है, दैट इज द थिंग। हाविंग इवेंट के बारे में पढ़ लिया हमने, अब कंसेंसस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ टेक, एक और होता है प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। अब कोई मेरे को बताएगा ये तीनों किस किस के मैकेनिज्म है? थोड़ा सा भी, ब्लॉकचेन लीड। हाँ ठीक है भाई, प्रूफ ऑफ वर्क तेरा बिटकॉइन का है, प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम में यूज हो रहा है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री शायद से जो नया ऑल्ट चेन से उसमें, आई आई एम नॉट श्योर, आई गेस सोलाना में या फिर कार्डानो में। ठीक है, सोलाना इनिशियल में या आई टोल्ड इनिशियली यू। जो प्रूफ ऑफ वो था ना, वर्क, इथेरियम में भी था। ठीक है, 19 सितंबर और 9 सितंबर के आसपास इन 2022 प्रूफ ऑफ स्टेक में गया था इथेरियम। ठीक है, यस यस यस। तो ये वाला एक इवेंट भी हुआ था जब हमारा सब लोग कह रहे थे इथेरियम 2.0।
तो इथेरियम 2.0 वाज लाइक कि तुम्हारा जो कंसेंसस मैकेनिज्म है वो बदला गया था फ्रॉम बिटकॉइन, लाइक फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। तो अब प्रूफ ऑफ वर्क का एक अच्छा सा एग्जांपल दो कि इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, किसी को पता है? एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है बेसिकली, जो हैश फंक्शन की होती है, और ओके, प्रॉब्लम मशीनरीज यूज होती है। मशीनरी यूज होती है, ठीक है। तो जैसा अनुश्री ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जो हमारा मशीन होती है ना, जो हमारा जीपीयू प्लस सीपीयू, ये दोनों भैया मिलके एक प्रॉब्लम देते हैं। हमारा एक ब्लॉकचेन का जो सर्वर है वो एक प्रॉब्लम देता है सारे नोड्स को, सभी को प्रॉब्लम मिलती है, सेम प्रॉब्लम। अब जिसका फास्ट जीपीयू एंड सीपीयू, वो उतनी जल्दी उसको कैलकुलेट करने में लग जाता है। अब जो जाके अगला हैश क्या पता कर ले, नेक्स्ट हैश क्या होगा, ठीक है, वो उस रेस को जीत जाता है और उसको क्या मिलता है, रिवॉर्ड। ठीक है, उसको मिलता है रिवॉर्ड। जो हम लोग अभी हाविंग इवेंट के बारे में बात कर रहे थे, वो जो रिवॉर्ड आते थे ना यहाँ पे, ये वाले, वो मिलते थे उस विनर को जो नेक्स्ट हैश पता कर लेता था, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। समझ में आया सबको ये वाली चीज? हाँ सर। Yes. ठीक है, ठीक है। तो यही चीज क्या होती थी ना, इथेरियम में भी होती थी। अब सिर्फ अगर मैं बात करूं तुम्हारा जीपीयू, तो एक गेमिंग सेटअप चाहिए होता था। कॉस्ट ऑफ जो इसकी कॉस्ट होती थी बहुत हाई हो जाती थी। माइनिंग करना बहुत हैवी पड़ रहा था लोगों को, एज वेल एज जो कम्युनिटी थी वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स दे दे के परेशान हो रही थी, क्योंकि अब जो है रिवॉर्ड्स कम हो रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं ज्यादा। ठीक है। सेकंड चीज जो हो रही थी कि भैया गर्मी जब बढ़ जाती थी ना, तो जो हमारा माइनिंग वाला प्रोसेस था वो बहुत ठंडा पड़ जाता था। बहुत कम लोग माइनिंग करते थे उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि ये जो जीपीयूज है इनको कूल रखना बहुत ही नेसेसरी है। बहुत सारा पानी, बहुत सारी बिजली, एसी कूलेंट, बहुत सारी रेडिएटर। तो ये वाले रिवॉर्ड्स थे, ये ऐसे आते थे। अब लोगों को समझ में आने लगा ग्लोबल वार्मिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो इथेरियम जो फाउंडेशन है उसने बोला कि नहीं, अब हम करते हैं इसे स्टेकिंग मेथड में। ठीक है। स्टेकिंग मेथड में उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया कि भैया इतने हैं, हम लोग जिसे खरीदने खरीदो, इकोसिस्टम में स्टेक करो, वैलिडेटर बनो, एंड अपना वैलिडेशन पॉइंट रखो अपने, मतलब मशीन के थ्रू ये लोग ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते थे, एंड वहां से ये लोग अपना स्टेकिंग मैकेनिज्म आगे लेके आए। ठीक है। तो बिटकॉइन वॉज प्रूफ ऑफ वर्क, इट इज स्टिल प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है। बिटकॉइन वॉज नेवर बिल्ट फॉर प्रोग्रामिंग और नेवर बिल्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ लाइक कुछ चेंजेस करके लोग उसमें भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो रिवॉर्ड हो गया, जीपीयू सीपीयू हो गया, एंड वाई वी वर यूजिंग द बिट प्रूफ ऑफ वर्क। तो ये वाली चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो। और एनी स्टिल डाउट? कोई डाउट है? नहीं सर। नो चलो ठीक है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारे पास समवेयर अराउंड कितने लोग हैं, 25 और 4, 29 पीपल्स हैं। ठीक है। मैं कह रहा हूँ भैया हम 29 पीपल्स हैं। ठीक है। हमारे पास 100 लोग आ रहे हैं, अब हम लोगों को क्या करना, उनका डेटा वैलिडेट करना है। ठीक है। तो अब डेटा वैलिडेट करने, जो अच्छे से वैलिडेट करेगा उसको क्या मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे। अब इस चक्कर में तो सब लोग आ जाएंगे कि भाई हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे वैलिडेटर वाली चीज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया मिनिमम मिनिमम हमें कितने स्टेक करवाने हैं, 32 ईथ। ठीक है। टू बी अ वैलिडेटर। मिनिमम है ये, मैक्सिमम भाई तुम्हारे ऊपर है, कितना ही कर लो। इनका जो मैकेनिज्म है, अगर तुम जितना ज्यादा स्टेक करोगे उतनी बार तुम उसके पूल में आओगे, वैलिडेशन पूल में। ठीक है। तो इस तरह से इनका स्टेकिंग वाला मैकेनिज्म काम करता था। बट इसमें एक चीज और होती है, दैट इज कॉल्ड स्लैशिंग। ठीक है। स्लैशिंग क्या होता है कि अगर आपने डेटा इनकरेक्ट वैलिडेट कर दिया, तो आपका जो 32 ईथ जो स्टेक हुआ था, ठीक है, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और वो पूल में चला जाएगा। ठीक है। और आपका जैसे 31 हुआ, आप उसमें वैलिडेट नहीं कर पाओगे। तो आपको अगेन एक खरीदना पड़ेगा 32, और फिर से आप पूल का हिस्सा बन पाओगे। तो इनका सीधा साफ रूल है कि भैया अगर आपने कुछ गलती करी
तो आपका भुगतान भुगतना पड़ेगा बाय लूजिंग 1 इथीरियम। ठीक है, इसका वैसे सिंपल है, 1/32 ETH तुम्हारा डिडक्ट होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू किसी को? नहीं सर। चलो ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ प्रूफ ऑफ स्टेक का, कि भाई मैकेनिज्म कैसा काम करता है इनका, इनका क्या रूल है, ये सारे यही रूल है इनके, इससे ज्यादा कोई और रूल है ही नहीं। ठीक है। अब प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, ये बहुत हरामी चीज है। मैं हरामी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आपने 10,000 भी स्टेक किए, ठीक है, इनका जब स्लैशिंग होगा तो ये 100% स्लैशिंग करते हैं, ये नहीं रुकते बिल्कुल भी, ये छोड़ते ही नहीं है किसी को, सुलाना वाले, कि आपने जितना डाला था, आपने एक बार भी गलती करी, आपका जो पूरा स्टेक था जीरो हो जाएगा। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से पढ़ें, दैट इज द गुड थिंग, क्योंकि सोलाना इस समय ट्रेंड पे है, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी दे रही है। तो इट वुड बी ग्रेट कि सोलाना का ये स्लैशिंग मैंने बता दिया है, उनका प्रूफ ऑफ हिस्ट्री कैसे वर्क करता है, ये एज अ होमवर्क आप लोग ले सकते हो। एंड जो भी आप पढ़ोगे ना, उसको ट्विटर पर डालना कि आपने क्या पढ़ा सोलाना के बारे में। ठीक है, डन या बताऊं? ये डन सर। चलो डन डन है। सर। चलो ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखो कंसेंसस मैकेनिज्म हो गया हमारा, प्रूफ ऑफ वर्क मैंने बता दिया, प्रूफ ऑफ स्टेक बता दिया। अब बताते हैं हम आपको व्हाट इज वेब 3। अब देखो व्हाट इज वेब 3 से पहले ना मेरे को बताना चाहिए तुमको वेब 1 वेब 2 देन वेब 3, राइट? चलो अब शुरू करते हैं। वेब 1, कोई एग्जांपल है किसी का वेब 1 का? सर स्टैटिक वेनिला HTML वाली साइट्स। कौन सी वाली साइट? वेनिला HTML जिसमें सिर्फ HTML होता था एंड जावास्क्रिप्ट होता था। ओके, एंड जीएस होता था। वेब 2 बताओ कोई। CSS इंट्रोड्यूस हुआ। इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस तो सब उसमें भी था। ठीक है, वेब 2 में, वेब 1 में भी तुम्हें सीएसएस मिल जाएगा। तो चलो फिर भी लिख देते हैं, एचटीएमएल था। ठीक है। सर HTTP सी, नया आया। हाँ HTTP नया आया था इसमें। हाँ ठीक है, जीएस हो गया। व्हाट इज वेब 3? ये हमारा करंट है, सब लोग समझते हैं करंट है, बट ये बहुत पुराना है। अब इसका एग्जांपल्स चाहिए मेरे को, ये आप लोगों ने तो एप्लीकेशंस बता दी मेरे को, थोड़ी सी एग्जांपल्स चाहिए कि कोई जीता जाता एग्जांपल है तुम्हारे आंखों के आसपास। हम्म। कोर्स। ब्लॉकचेन वॉलेट ऐसा। यार देखो, वेब 1 का सिंपल सा एक एग्जांपल है विकिपीडिया। तुम उसमें डेटा देख सकते हो, डेटा पढ़ सकते हो, उसको जाके वापस एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें तुम्हारा कोई ओनरशिप नहीं है, तुमने लिखा, तुमने डाल दिया, लोग आके पढ़ गए, सिंपल। यही था वेब 1। क्योंकि याद करो, आई डोंट नो तुम लोगों के पास कंप्यूटर कब आया, लैपटॉप कब आया, बट जब मेरे पास आया था तब मैं बस ब्लॉग्स पढ़ पाता था। ठीक है, लोग क्या लिख रहे हैं, रिसर्च वगैरह, उस टाइम पे डेटा क्रिएट हो रहा था वेब 1 के टाइम पे। ठीक है, लोग बस जो दिमाग में आ रहा है क्रिएट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। वेब 2 में क्या हुआ, इट्स लाइक कम्युनिकेशन लेयर। ठीक है, कि एक मैं हूँ, एक दूसरा बंदा है, दोनों लोग बात कर पा रहे थे। मीन्स मैं मैसेज रीड एंड राइट कर पा रहा था, दूसरा बंदा रीड एंड राइट कर पा रहा था, उसको कम्युनिकेशन, लाइक ईमेल आया आपका, ठीक है, आपका उस टाइम पे टेक्स्ट मैसेजिंग आई, आपका लाइन वायर वाला जो कनेक्शन थे वो सारे एक्टिव हुए। ठीक है, लाइक जो आपका टेलीफोन था ना, उसको एज अ इंटरनेट केबल यूज किया गया। So that is that thing. And Web 3 we all know, like read, write, ownership. We talked about these things. ठीक है, अब ये ऊपर ऊपर से बताया मैंने, इसमें किसी को कोई डाउट है? क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा डीप बताऊंगा अभी, यहाँ तक। नो सर। चलो नो ठीक सर। है, गुड। अच्छा सा पहन लेते हैं। ओके, देखो वेब 1 मैंने बताया विकिपीडिया। ठीक है, अब विकिपीडिया में इसको ओपन भी करके दिखाते हैं, विकिपीडिया क्यों कही मैंने। तो विकिपीडिया, अब विकिपीडिया में क्या है,
बहुत सिंपल, देखो यहाँ पे तुम लोग सर्च कर सकते हो, मैंने ये ले लिया। अब इसमें कहीं पे एडिट या कोई टॉक करने का ऑप्शन है ही नहीं, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। देख लो, टॉक का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, देखो, यूजर टॉक, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट इज अ थिंग। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड तुम्हारा वेब 1, ऑलवेज वेब 1। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है वेब 2 का। देन तुम्हारा वेब 2 का ऑप्शन आता है तुम्हारा व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ब्ला ब्ला ब्ला, एनी एप्लीकेशन विच इज वर्किंग ऑन दिस। व्हाट इज वेब 3? अब वेब 3 में कौन से एप्लीकेशंस आते हैं जिसका डेटाबेस जो है, क्या डेटाबेस, वो ब्लॉकचेन है। ठीक है, वो ब्लॉकचेन है, दैट इज कॉल्ड डैप। ठीक है, DAPP मीन्स डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वेब 1, वेब 2, वेब 3। अब इस ओनरशिप की बात होती है, तो ओनरशिप को मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया व्हाट्सएप वाला, कि अगर मैं एक ग्रुप में हूँ, मैंने अपना डेटा लिया, मैंने उसे डाल दिया, तो बाकी 2 पार्टी देख पाएंगी या 3 पार्टी देख पाएंगी, एडिट नहीं कर पाएंगी, चेंज नहीं कर पाएंगी कभी भी। तो सेम इन दिस, कि अगर मेरा डेटा मैंने इनपुट किया, ब्लॉकचेन में गया, तो डिसेंट्रलाइज हो गया, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड डैप। ठीक है, अभी क्या होता है, फेसबुक और इसमें कंपनीज ओन करती हैं डेटा, वो मैनिपुलेट कर सकती हैं, वो चेंज कर सकती हैं अपने हिसाब से, किसी को भी बेच सकती हैं, परमिशन दे सकती हैं। अभी क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने लिखा कि भाई मेरा डेटा मैंने जिस एड्रेस को शेयर किया उसी के पास रहेगा, वो किसी और को शेयर नहीं कर सकता। दैट इज अ रूल आई रिटन इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आई रन इट, एंड दैट्स एप्लीकेशन वर्क्स लाइक दैट। दैट इज द थिंग। ठीक है, तो व्हाट इज वेब 3? वेब 3 इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द इंटरनेट दैट एम्स टू शिफ्ट द पावर from the larger centralized companies into the hands of individual users. Decentralization, immutability, ownership of data, permissionless, open, uninterrupted. These are the everything which I talked from the beginning. ठीक है, इसमें में किसी को कोई इशू है, कोई समझ में नहीं आया हो अभी तक? No, sir. नहीं सर, क्लियर है। चलो, ठीक है, हाँ सर। अब आते हैं वॉलेट्स पे। व्हाट इज वॉलेट्स? किसी को पता है वॉलेट एग्जांपल, किसी कोई एक वॉलेट्स के? सर डोजिमा वॉलेट, कौन सा? MetaMask. डोजिमा मेटामास्क। और मेटामास्क। ठीक है, मेटामास्क हो गया, वॉलेटेक्स हो गया, तुम्हारा फैंटम हो गया, टेजोस का अलग है, टॉन का अलग है, सबके अपने मेटा वॉलेट्स हैं। बट ये वॉलेट करते क्या है? ठीक है, ये जो वॉलेट्स है, ये आपको जो वेब 3 पे बनी हुई चीज है ना, क्रिप्टो, उसको बाय एंड सेल करने का काम आते हैं। आपका जो डेटा है, जो आपका एक एक तरह से पासवर्ड मान लो, ये वॉलेट है, इसमें जो आपका जो आईडी होते हैं ना, एड्रेस, एड्रेस क्या है एट द एंड? एड्रेस है आपका PKI। PKI, किसी को पता है व्हाट इज PKI? प्राइमरी No, की sir. इंटरचेंज, पब्लिक की क्या? प्राइवेट की इंटरचेंज, सॉरी प्राइवेट की इंटरचेंज। प्राइवेट की इंटरचेंज, ओके। और कुछ? ये भाई हम्म, पब्लिक की या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको मिलता है 2 चीजें उसमें मिलता है। पहला, प्राइवेट की। ठीक है, प्राइवेट की, एंड दूसरा मिलता है पब्लिक की। अब पब्लिक की, प्राइवेट की क्या सी दिखती हैं? ठीक है, दिखती हैं वो सब एड्रेस ही है, मतलब हैश ही दिखता है उसमें भी। ठीक है, उसमें आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो आपको बस मिल जाती है। प्राइवेट की क्या होती है, ये करती है पब्लिक की से। मतलब अगर मैं अपना पब्लिक एड्रेस मिधांश को दूं, और मैं मिधांश से कहूँ भाई ये मेरा एड्रेस है, कभी भी मेरे से बात करनी हो तो मेरे को इस वाले एड्रेस पे मैसेज कर देना, दैट इज द थिंग। अगर मैं गलती से प्राइवेट की दे दूं मिधांश को, तो अब मिधांश के पास चला गया मेरा पब्लिक की का भी एक्सेस, कि अगर कोई मेरे को मैसेज कर रहा है, मिधांश क्या कर सकता है, प्राइवेट की इंपोर्ट करके मेरा पब्लिक जो भी डेटा आ रहा है उसको रीड एंड राइट कर सकता है। वो मैं बन सकता हूँ। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो प्राइवेट की हमेशा प्राइवेट रहती है, वो लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। पब्लिक की भाई दुनिया जहाँ के साथ शेयर करो, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो जो एड्रेस होते हैं हमारे वॉलेट में, तो ये भी यही होते हैं। पब्लिक की जो हमारा एड्रेस है 0x करके, वो हमारा पब्लिक एड्रेस है। जो हमारे मेनोमिक्स होते हैं और जो प्राइवेट की होती है,
वो होती है आपकी जो यहाँ पे इस एड्रेस को हेल्प करती है रीड आउट करने में। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को एक वॉलेट का एग्जांपल ही दे देता हूँ, मेटामास्क बना के। ठीक है, हम्म, ठीक, देखो। अब मैं गया इसमें मेटामास्क, ये इंस्टॉल कर लो सभी लोग, क्योंकि अभी हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट जब करेंगे तो जरूरत पड़ेगी। गेट मेटामास्क, ठीक है, इंस्टॉल मेटामास्क फॉर क्रोम, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, and it's gonna be added automatically actually। ठीक है, तो ये एक्सटेंशंस हैं, ये हमारे इंस्टॉल हो गया आई गेस, देखो। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया और मैंने इसको पिन कर लिया। अब इसको रन करेंगे तो व्हाट इट विल गिव मी, आई एग्री। ठीक है, क्रिएट न्यू वॉलेट, ओके दिस थिंग पढ़ लेना। और ये जो एड्रेस है इसमें आप कुछ भी लिख दो। हम्म, और ठीक है, एड्रेस मैच हो गया, ये किया, क्रिएट न्यू वॉलेट किया। ठीक है, अब जो मैंने मेनोमिक्स की बात करी थी वो है भैया सिक्योर माई वॉलेट। अब ये जो मेनोमिक्स है, ये ना रिवील माई सीक्रेट फेस, ये वाली जो चीज़ें हैं ये होती है इंपॉर्टेंट, ये किसी को नहीं दिखानी चाहिए। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी बनाया, मैं डिलीट कर दूंगा इसके बाद। ठीक है, तो ये कभी भी किसी का शेयर मत करना। ठीक है, ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट किया, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, टड़ा। अब इसमें है देखो, इसमें इसने बोला है स्प्रिंग के बाद क्या आएगा, कवर, कवर के बाद है मेरा ब्रिज, तो कवर ब्रिज, और उसके बाद है एट। ठीक है, एट कंट्री हिंट, उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट टैक्सी, आप लिखना प्रॉफिट, PROFIT। ठीक है, अब ये सारे मैच हो गए तो इन्होंने करा ग्रीन। अगर मैं इसमें एक भी गलत लिख दूं, प्रॉफिट या प्रॉफिट लिख दूं तो ये चलेगा नहीं। तो ये जो है एट द एंड ये भी कन्वर्ट होके हमारे एक हैश में कन्वर्ट हो रहे हैं बैकएंड पे, वो भी अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, डन, डन, नेक्स्ट, डन। here you got the your wallet एड्रेस। ठीक है, अभी ये जो है ये है मेरा पब्लिक एड्रेस, और मैं कहूँ कि भैया मेरे को अकाउंट डिटेल्स दो और शो प्राइवेट की करनी है। ठीक है, अब ये देखो ये जो की आया यहाँ पे प्राइवेट की है फॉर द अकाउंट, सेम है जो मेनोमिक्स है हमारे उसी वही है ये। ठीक है, वो कन्वर्टेड है। अगर मैं ये इंपोर्ट कर लूँ और वो कुछ और, देखो ये अगर मेरे पास है, मैंने कॉपी किया, मैं एक दूसरे अकाउंट में गया, मैं लेट्स सपोज इस वाले में गया, यहाँ पे गया, ओके, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे ऐड अकाउंट, इंपोर्ट अकाउंट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया प्राइवेट की, इंपोर्ट, टड़ा। जो मैंने कहा मिधांश को अगर गलती से शेयर कर दिया तुमने तो उसके पास ही सेम एड्रेस चला जाएगा। तो दिस इज द थिंग, लोग अगर जो तुम्हारी प्राइवेट की खो जाती है तो लोग उसमें से बैलेंस कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो वॉलेट्स सिक्योर भी बहुत ज़्यादा है और इनसिक्योर भी है। इनसिक्योर जब है जब आपने अपनी चीज़ों का ध्यान खुद से नहीं रखा। यहाँ वॉलेट तक सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। हाँ सर, क्लियर हो गया। किसी को डाउट नहीं आएगा कि भैया वॉलेट में कैसे इंपोर्ट हो गया, क्या था, क्यों था? चल, गुड। ठीक है, अब आते हैं भैया एप्स एंड डैप्स पे। तो आई डोंट थिंक सो ये मेरे को दोबारा से बताने की जरूरत है। हाँ मितांश, लाइक 2 मिनट के लिए होल्ड कर, मैं सबको कैमरा ऑन कराने के लिए बोलता हूँ, एक फटाफट फोटो ले लेते हैं, 8 बजे भी बज रहे हैं, एंड फिर उसके बाद वील कंटिन्यू। भैया आपने 2 घंटे क्या किया था, मैं तो उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ अब।
अरे नहीं नहीं, कोई चलेगा, आराम से पढ़ा, सबको सीखना ही है। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा फोटो ले लेंगे तो वो लोग भी डाल पाएंगे ना। ठीक है ठीक है। चलो गाइस, सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लो, एक फटाफट स्क्रीन ये ले लेता हूँ, फोटो वगैरह ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, देन वी आर गुड टू गो। मैं खुद पहले ऑन करता हूँ। ओके लाइक देखो गाइस, अगर मजा आ रहा है ना पढ़ने में, तो मैं बहुत देर तक पढ़ा सकता हूँ। गाइस, बस। मेरे को बस 3 ही कैमरा ऑन दिख रहे हैं यार। सर मेरा कैमरा बहुत खत्म है तो मतलब नहीं है चलाने का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा भी है कोई दिखाओ। बात नहीं, कर ले, जैसा दिखाई भी है कर लो, 2 मिनट का तो बात है। हाँ ये ठीक है, वैसलीन लगाया हुआ है ना, आई समझ गया भाई, ये हमने बहुत किया था ऑनलाइन क्लासेस में, पता है हम लोग वैसलीन लगा देते थे कैमरा पे, बोल दे खराब हो गया। नहीं सर स्टिकर चिपका रहा है सर। हम्म। चलो, और कुछ? या नहीं, बस ले लिया मैंने फोटोज, वी कैन हम्म। कंटिन्यू। चलो ठीक है, ओके। एक सेकेंड, 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है वैसे, थोड़ा जल्दी रैप अप करते हैं यार, 12 स्लाइड नहीं खत्म कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है। एप्स एंड डैप्स में किसी को फर्क पता है? मतलब मैंने लिखा था वही है वैसे भी, और अभी थोड़ा पहले समझाया भी था। अब मैं चाहूंगा कोई भी ऑडियंस से खुद से आए और मेरे को समझाए, या सबको समझाए एक्चुअली। डैप्स बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं। ऐप जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, एक ही अथॉरिटी के पास सारी वो होती है हम्म। कंट्रोल। डैप्स में नहीं होता? नहीं सर। क्या बात कर रहे हो? मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा, मैंने ऐप बनाया, कल को मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ऐसी चीज लिखी हुई है कि सब लोग जब मेरे को 1-1 रुपए देंगे, वो मेरे पास चला जाए और उनकी प्राइवेट की मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ, मेरे ही कोड है। तो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज कहाँ से आया उसमें? और सर एप्स में सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है एंड एप्स में ब्लॉकचेन डेटाबेस होता है, राइट। वो वेब होता है। तुम ओनरशिप पे बात कर सकते हो, तुम ये नहीं बात कर सकते कि डैप भैया मेरा है तो भैया मेरा रिटर्न कोड है ना। ठीक है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिखा है, मैंने जैसे मर्जी लिख दिया हो। अभी वजीर के साथ फ्रॉड हुआ ना, क्यों हुआ? यही रीजंस हैं। किसी को याद है स्क्विड गेम्स? याद है? किसी ने देखी है स्क्विड गेम्स यहाँ पे? यस सर। चलो स्क्विड गेम्स देखिए। स्क्विड गेम्स वालों ने क्या किया था, एक खुद का टोकन निकाला था। वो टोकन निकाला और अगले ही रात वो गायब हो गया टोकन मार्केट से। वो एक रीजन था उसका। उन्होंने जो सारी होल्डिंग थी ना वो एक ही अकाउंट में रखी थी, जो वैल्यू बढ़ी और वो वहीं की वहीं दब के मर गई। तो ये जब टोकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना आगे इन फ्यूचर्स, तो समझ में आएगा कि स्क्विड गेम्स का भी एक स्कैम था। बहुत अच्छा है, लोग उसे एज अ केस स्टडी लेते हैं, तो पढ़ना उसको भी। तो एप्स एंड डैप्स में जैसा अनुश्री ने बताया कि, और ध्रुव ने भी बताया कि तुम्हारा एंटिटी और डेटाबेस वाला सीन होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट टोकनाइजेशन नेटवर्क, रिवॉर्ड नेटवर्क फॉर द यूजर्स। कुल मिला के डैप्स में बहुत सारा पैसा मिलता है, अभी आगे नहीं मिलेगा। इसको बनाना है अभी बना ले। अब आते हैं वेब 2 आर्किटेक्चर में। वेब 2 आर्किटेक्चर में, अच्छा, वेब 2 में आने से पहले मेरे को कोई एक चीज बताएगा, व्हाट इज एन एपीआई? सभी लोग बात करते हैं एपीआई कॉल कर लो, एपीआई ये एपीआई वो, व्हाट इज एन एपीआई? Sir, API एप्लीकेशन stands for Application Programming Interface, which is a medium or a way from which two softwares can communicate. अगर अगर मैं कहूँ एक रिक्शे वाले को समझाना है, कैसे समझाओगे? एपीआई वेटर है। वेट। Yes. चलो, वेटर है, क्या काम है उस वेटर का? जो डिमांडेड इंफॉर्मेशन होती है वो डेटाबेस से, मतलब लाइक जहाँ भी स्टोर्ड है वहां से अपन को लाके देना। लाके देता है वो? हाँ बेसिकली। ओके। मीन्स शो करता है कि सर ये डेटा है। ओके, अगर मैं कहूँ कि भाई कभी एपीआई गलत डेटा ला सकती है तुम्हारे लिए? सर वो डिपेंड करता है इसमें इंटीग्रल है कि नहीं है। ओके, इंटीग्रिटी है कि नहीं है, या परसिस्टेंट स्टोरेज में था कि नहीं था? राइट। तो देखो एपीआई ही, जैसे एपीआई होती है तुम्हारी क्या कहते हैं वेब 2 में, ठीक है,
और तो वेब3 में क्या होता है, ABI, यू नो, ABI, एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, सिंपल। वो तुम्हारा बाइनरी डेटा को लेके आती है ब्लॉकचेन से, और वहां से वो इंटरैक्ट करने में हेल्प करती है। जो तुम्हारे फंक्शंस होते हैं वो ABI में सारे लिखे जाते हैं, वो मैं अभी दिखाऊंगा कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब उस पर बात करते हैं। पहले वेब 2 आर्किटेक्चर में, तो वेब 2 आर्किटेक्चर में क्या होता है, सिंपल। फ्रंट एंड है, तुमने अपने सर्वेंट को बोला कि भैया हमको खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए क्या करेगा, कहेगा कि भैया हमको खाना है पनीर पुलाव। अब पनीर पुलाव जाएगा, पहले शेफ से पूछेगा भैया हमारे मेन्यू में पनीर पुलाव है, नहीं है, शेफ ने मना कर दिया, वापस आ गया, ठीक है, कि भैया हमारे पास तो नहीं है, तो उसे कहते हैं एरर 404 नॉट फाउंड। ठीक है, अब मैंने कहा कि भैया मेरे को पनीर भुर्जी खानी है, पनीर भुर्जी है, उसने बोला हाँ है, तो वहाँ आगे स्टेटस तुम्हारा 200। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो API का काम यही है कि एक रिक्वेस्ट को लेना और सर्वर के पास चले जाना कि भैया वहां पे पूछ लेना कि तुम्हारे पास है। सर्वर क्या करता है, वो अपना डेटाबेस में चेक करता है कि भैया हाँ भाई है भी कि नहीं है। अगर होता है तो सर्वर क्या करता है, API सर्वेंट को पकड़ा देता है, सर्वेंट लाके हमें परोस के दे देता है। दैट इज द लेमन लैंग्वेज ऑफ द वेब 2 आर्किटेक्चर, कैसे ये एग्जैक्टली काम करता है। गॉट इट? यस Yes, हाँ sir. है। चल, चलो, सेम विद द वेब 3। अब वेब 3 में क्या होता है, नोड प्रोवाइडर्स होते हैं, जो नोड्स होते हैं ना, हमें बनना पड़ता है उसका हिस्सा, कि भाई उसमें डेटा है कि नहीं है ब्लॉकचेन में। तो उसके ही के लिए हमारे नोड प्रोवाइडर्स लाइक एल्केमी, इन्फ्यूरा, वेब 3, और सॉरी वेब 3 बात करो, मोरालेस, थर्ड वेब, दीज आर द प्रोवाइडर्स, नोड प्रोवाइडर्स, जो हम लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कि हम उन ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर पाए। उनको कहते हैं RPC URLs। ठीक है, वो RPC URLs तुम्हें हेल्प करती हैं टू इंटरेक्ट विद द ब्लॉकचेन। ठीक है, इसमें भी सेम होता है कि तुम अपना डेटा लिखते हो, रिक्वेस्ट मारते हो, वो नोड के पास गया, वो जाके ब्लॉकचेन में बात करेगा, है तो भैया लेके आ जाएगा, नहीं तो वो कुछ नहीं देगा, वो RPC एरर देगा और कुछ नहीं। दैट इज द सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ द वेब 3। और अगर तुम लोग प्रॉपर वाला आर्किटेक्चर जानना है, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट, कि भैया वो नोड से कैसे आ रहा है, उसमें फंक्शनिंग है। तो उसके लिए तुम लोग एक काम कर सकते हो, BTC 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 पेपर, बिटकॉइन पेपर यार, हद। बिटकॉइन वाइट पेपर, ये लिंक है बिटकॉइन का ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, 8 9 पेज का ही है, इसको पढ़ लो, तुमको पता चलेगा कि आर्किटेक्चर इसका कैसे लिखा गया था। एक इसको पढ़ लो, और एक और दे रहा हूँ मैं, इथीरियम का, इथीरियम वाइट पेपर। ठीक है, तो यह तुम लोग यहाँ से, तुमको यहाँ पे अच्छा वाला मिलेगा, ये रहा। ठीक है, एक यहाँ से पढ़ो, ये 2 चीजें हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लो। तुमको बेसिक आर्किटेक्चर, बेसिक फंक्शन, बेसिक क्या है क्यों है, वो समझ में आ जाएगा कि बिटकॉइन की क्या जरूरत पड़ी, वो कैसे स्पीड में फास्ट है, एंड ऑल। अब इसी के बाद बात करेंगे आगे हम लोग। ये हो गया, ये हो गया। अब सच में पूछता हूँ, कोई सवाल है क्या यहाँ तक, क्योंकि इसका हम लोग डेवलपमेंट करेंगे छोटी सी। मनीष, कोई सवाल? हैंड रेज है। कोई सवाल नहीं है किसी को? No, sir. चल ठीक। उफ, नहीं, हाँ। सर एक अपन सवाल। डेवलपमेंट में तो जा ही रहे, वेरएज जिन लोगों को डेवलपमेंट फिजिबल नहीं रहेगा, तो नॉन डेवलपर्स के लिए वेब 3 में क्या क्या है वो भी एक हम्म। बार बता दे, देन वील मूव ऑन टू द डेवलपर्स। ओके, तो ऐसे यहाँ पे कितने लोग हैं जो डेवलपर नहीं बनना चाहते? हैंड रेज करो पहले तो, जो डेवलपर ही नहीं बनना चाहते। एक, और कोई? बस एक, दो, गुड चॉइस। एनीवन एल्स? कोई नहीं है? चलो कोई नहीं, देखो, जो डेवलपर नहीं जो बनना चाहता वेब 3 में, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्योंकि देखो, डेवलपर की जो सैलरी है, वो तुम एक बार के एयर ड्रॉप से भी कमा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द लक। ठीक है, तो
वेब 3 में जैसे मैंने अभी बताया, वेब 1 जब हमारा इंटरनेट आया ही आया था तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, डेटा क्रिएट कर रहे थे। ठीक है। अब वेब 3 क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है बिकॉज ऑफ द मल्टीपल ब्लॉकचेन्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। मैंने एक शीट बनाई थी, मैं दिखाता हूँ यार, मैं बट वो दूंगा नहीं किसी को, मैं दिखाऊंगा। जस्ट गिव मी 1 second। ब्लॉकचेन्स, हियर वी गो। सो दीज आर द ब्लॉकचेन्स जो मैंने फाइंड करी। ठीक है। इट्स समवेयर अराउंड 567 566 है। ठीक है। अब सबकी एक अपनी ब्लॉकचेन है, सब अपने तरीके से बना रहे हैं। ठीक है। सब कह रहे हैं कि हम फास्ट है, हम फास्ट है। ये देखो यूनिवर्सल ब्लॉकचेन, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, ये देखो। तो अब इतनी सारी ब्लॉकचेन होने की वजह से ना दिक्कत ये हो गई कि भाई किसको पढ़े, कैसे पढ़े। तो ये ऐसी एक लिस्ट आप लोग भी बनाओ अपने लिए और इनके इकोसिस्टम को सपोर्ट करो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ ब्लॉग्स, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट। ठीक है। डेवलपर्स मीटअप्स, यहाँ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो कि आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आप उसको इन कंपनीज को बेच सकते हो, इनके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, ठीक है, उन्हें सुधार सकते हो। एक बहुत अच्छी कंपनी है, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं पता, बट उन लोगों से मैंने बस एक ही बात कही थी कि मेरे को अपना डॉक्यूमेंटेशन अच्छा करके दे दो। तो इनका डॉक्यूमेंटेशन आज भी ऐसा का ही ऐसे ही होगा। ये देखो, आज भी इनका यहाँ पे ये है। ठीक है, गिटहब वाला। और आज भी अगर मेरे को यहाँ से वो करना है ना, ये देखो ना किस तरह से इनका मेंटेन्ड है। और मेरे को यहाँ पे हैमबर्गर बटन जनरली ऊपर होता है, राइट। इनका हैमबर्गर बटन यहाँ नीचे है, ये देखो कॉर्नर पे। तो इस तरह की सिली सिली मिस्टेक्स उठाओ। अगर आप डेवलपर नहीं बनना चाहते, यू कैन बी अ गुड या राइटर बनो। उनके डॉक्स सुधारो। अब यहाँ पे देखो ना, लिखा बहुत कुछ है, बट लेमन लैंग्वेज में जो मेरे को समझ में आए, जो रिक्शे वाले को समझ में आए, उस लैंग्वेज में है ही नहीं है। देखो अब ये मैं रिक्शे वाले बार बार इसलिए कहता हूँ कि भाई रिक्शे वाले भी आजकल पढ़े लिखे हैं, मानो ना मानो। तो ये वाले ऑप्शंस है आप लोगों के पास कि आप अपना ये चला सकते हो। आप एक नोड खरीदा, नोड वैलिडेटर बन गए, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है। इसमें और कोई सवाल है? नहीं, कौन मांगा एक्सेल भाई। चलो कोई नहीं। ठीक है। तो अब आते हैं, और कोई सवाल किसी का? मेदांश, करण, नहीं, एनीवन? तुम लोग फ्री हो, सवाल जो भी रहेगा पूछ लो, देन उसके बाद वील गो टू द हैंड्स ऑन। क्या? मैं सबको पूछ रहा हूँ कि किसी को अच्छा। कुछ पूछना है तो पूछ लेने दो भाई। हाँ, क्योंकि अब हम लोग किस सीधा डेवलपर ना ज्यादा ज्यादा सीधा डेव 15 पे से 20 मिनट जाएंगे। लेंगे। अभी सर आप बोले थे ना कि अभी इसमें डी ऐप बना लो, बाद में कोई काम नहीं आएगा। आपने कुछ टाइम पहले बोला था, आपने क्यों बोला अभी कि डीएफ बनाना बना लो, देन उसके बाद क्या बोला था मैंने? बाद में, मतलब कुछ बाद में आप पैसे नहीं कमा पाओगे अगर डी ऐप बनाओगे तो। हाँ, तो देखो अभी क्या है, एआई बहुत ज्यादा बूम पे है। ठीक है। मैं मजाक से हट के बोल रहा हूँ, अगर मैं गया, मैं न्यू भी हूँ, क्लाउड पे गया और मैं कहता हूँ राइट अ मीम कॉइन कॉइन कॉन्ट्रैक्ट विद फ्रंट एंड विद सप्लाई। ठीक है। इतनी सप्लाई चाहिए मेरे को, एक कॉन्ट्रैक्ट बना के दे विद फ्रंट एंड। मेरे को कितनी देर लग रही है मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बनाने में? मैंने इसलिए बोला कि अभी जो कोर लैंग्वेज है, कोर नॉलेज है, वो एआई की बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अगर आपको पैसा ही कमाना है इनिशियली, तो दीज आर द बेनिफिट्स कि आप ये लो, उठाया, पेस्ट करा, हो गया तुम्हारा काम। ठीक है। अब मेरे से ये भी पूछ रहा कि भैया इंक्लूड वॉलेट कनेक्शन, वुड यू लाइक टू ऐड एनी स्पेसिफिक फीचर? यस, ऐड ऐड प्राइस ओरेकल। मैंने बोला प्राइस ओरेकल मेटामास्क डाल भी दे। ऐड कर दो। हाँ, कि भैया अब प्राइस ओरेकल लाइव जो भी मेरे एग्रीगेटर्स हैं जहाँ पे भी प्राइसिंग हो रही है, उसके हिसाब से मेरा प्राइस फीड बना दो। ये रहा, उसने बना दिया।
अब मेरे लिए तो काम आसान है ना, दैट्स व्हाई आई सेड कि भाई अगर तुम डैप बना के अभी, क्योंकि अभी क्या है, लोगों के पास नई चेन्स आ रही हैं, ठीक है, लोग अपनी अपनी नई चेन्स बना रहे हैं, उनका इकोसिस्टम अडॉप्टेबल चाहिए। देखो एक कंपनी है जो अभी मैं यही कंपनी को लेके आया हूँ दोबारा से, मैं इनसे कह रहा हूँ कि मेरे को ये बकचोदी मत दो, ये मैं यहाँ पे आ गया, ये भाई फ्री में, मजाक से हट के ये फ्री में तुमको 50 डायम दे रहे हैं फ्री में, कुछ नहीं करना, करने के लिए क्या करना है, ये 5 स्टेप करने हैं, 50 डायम ले लो, कल को इसकी एक वैल्यू $1 हो गई, $50 इन्होंने फ्री में बांट दिया, समझो, दैट इज द थिंग। अच्छा, तो ऐसे ये ऐसे दे रहे तो और भी अलग अलग ब्लॉकचेन अपने अपने ऐसे देते रहते हैं। हाँ सभी लोग दे रहे हैं, देखो अभी मैं यहाँ से जाऊं एक्स पे, एयर ठीक है, ड्रॉप्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एयर ड्रॉप्स, एयर ड्रॉप्स। हाँ एयर ड्रॉप्स, देखो ऑफिशियल अनाउंसमेंट बिटकॉइन ये लाइव है बिटमार्ट एक्सचेंज पे, और ये लोग रेडी हैं, देखो इनका जो पे, ये खरीदो। अभी इन लोगों ने 0.5 में बेचा था, आज इनकी प्राइसिंग है 1.18, 24 घंटे भी नहीं हुए, ये देखो 24 घंटे भी नहीं हुए, तुम्हारे पैसे डबल। भाई ये है ट्रेडिंग, 1.12 इस समय, देख रहे हो कैंडल्स, दैट इज द थिंग। यहाँ पे शुरू हुआ 4.11 पे, ऊपर गया, ऊपर नीचे ही हो रहा है, बट लोगों को प्रॉफिट हुआ ना जिन्होंने 0.5 पे खरीदा था, ठीक है। तो ये वाली चीज है कि भाई एक लिमिट, एक सेचुरेशन पॉइंट आएगा जब तुम्हारे डैप्स की वैल्यू नहीं होगी, तो अभी वैल्यू है, कर लो, दैट इज द थिंग, नथिंग मोर, लाइक नथिंग पर्सनल टू बी ऑनेस्ट। ओके ध्रुव, हाँ चलो अब सर, मुझे मैं इससे एक क्वेश्चन था। हाँ अभी मैं एक न्यूज, अभी नया नया हूँ, सेकेंड ईयर को ही हूँ, तो हाँ, आगे मुझे ब्लॉकचेन स्टडी करना है, तो मैं कौन से पॉइंट ध्यान में रख के ब्लॉकचेन का स्टार्ट कर सकता हूँ स्टडी, मतलब। डिपेंडिंग कि तुम्हें बनना क्या है, ब्लॉकचेन कोर डेवलपर अलग है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर अलग है, ठीक है। मैं जो अभी तुमको बताने जा रहा हूँ दैट इज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, नॉट अ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के जो मैंने फंडामेंटल्स यहाँ पे समझाए थे ना, ये वाले, हाँ सर। ये आता है तुम्हारा C++ हैशिंग मैकेनिज्म कंसेंसस, ये कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम राइटिंग अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर। लोग जो हायरिंग जो चल रही है इस समय, जो लोग मर रहे हैं करोड़ों रुपए दे के भी तुमको काम पे रखने के लिए, वो ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर मार्केट में बहुत सारे हैं अब, ओके ठीक है। तो अगर तुम्हें कभी भी सीखना है ब्लॉकचेन, आई विल रिकमेंड कि भाई इनके गो इथेरियम की वेबसाइट, गो इथेरियम के गिटहब पे जाओ, और यहाँ से ये पूरा कोड मारो कॉपी, अपने उसमें इसे सेटअप करो, और देखो चेंजेस कर करके के भाई मैं इसे कैसे अपने हिसाब से इंटरफेस बना सकता हूँ इसका, मेरे को क्या चाहिए, कंसेंसस कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये जैसे कंसेंसस है, ये कंसेंसस में ज्यादा बड़ी फाइल थोड़ी है, बीकन है मेन फाइल, ये है हमारी कंसेंसस, इतने समय लिखा गया है, ये रहा, सील हैश, कैलकुलेट डिफिकल्टी, एपीआईज, क्लोज एरर, प्रिपेयर करना है, वेरीफाई अंकल्स हो गए, हेडर्स हो गए, ऑथर कौन कौन है उसका, आपका, दैट इज अ थिंग, दैट इज अ कंसेंसस छोटा सा, ओके सर। समझ में आया? मुझे एक जनरल क्वेश्चन भी था। अभी जो हाँ मेरी ब्रांच है वो कोर की ब्रांच है, इसी। हाँ, तो मैं ब्लॉकचेन हैज ऐड ऑन कर सकता हूँ क्या, मतलब चलेगा क्या इसी के लिए? भाई लाइफ में अगर तुम बीबीए भी कर रहे हो ना और तुम्हें ब्लॉकचेन डेवलपमेंट आती है, कोई तुमसे आके डिग्री नहीं पूछेगा, ट्रस्ट में। अगर तेरे को C++ आती है, आई कैन ऑफर यू राइट नाउ C++ एट अ कोर लेवल, ओके ठीक है। क्योंकि अभी तुम्हें मैंने तो बोला ब्लॉकचेन, अब ब्लॉकचेन भी एक मशीन पे चलती है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन। इथीरियम का एक मशीन है कॉल्ड इथीरियम EVM, इथीरियम वर्चुअल मशीन। जो वर्चुअल मशीन्स हैं उसका कोड लिखवाना है हम लोगों को, उसके लिए डेवलपर्स हायरिंग कर रहे हैं, ओके। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो ऐसे थैंक यू सर। धीरे धीरे यही चीजें हैं, लोगों को नहीं पता, लोग क्या कहते हैं, मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया, मैंने एक पेमेंट का बना दिया, भाई वो पेमेंट का बनाने के लिए मेरे को AI के अंदर पड़ा हुआ है मेरे पास कोड, मैं तो उसको यूज करूंगा ना। मेरा प्राइस हो रहा है, कल बताओ ओनेबल ये रहा, मेरे पास 18 ईथर्स का वो, ये जो 10 टू द पावर 18 आता है, ये तुम्हारा ईथर्स में वैल्यू है, टोटल सप्लाई इनिशियल हमारी इतनी ही है, उसका प्राइस फीड हमने यहाँ से ले लिया,
मीम टोकन का मीम नाम रख दिया, अब मैंने इसका नाम अपने ऊपर रखना था कनिष्क रख दिया। ठीक है, इनिशियल तो अप्लाई हो गया, तुम्हारा मिंट हो गया, ये एड्रेस पे मिंट हो गया, दैट इज अ थिंग डन। अब डिस्प्ले कैसे करानी है, वो ये रहा, सिंपल प्राइस ओरेकल। ये देखो, अब मैं यही चीज मैं कोड करके भी दिखा सकता हूँ, बट यही यहाँ से एक्सप्लेन करना मेरे लिए ज्यादा इजी है। कि एक ऐप है टोकन ऐप, उसमें मैंने यहाँ पे कुछ स्टेट्स ले ली। रिएक्ट, अगर रिएक्ट कितने लोगों को आती है यहाँ पे, रिएक्ट कितने लोगों को थोड़ी आती है, बहुत। टाइपस्क्रिप्ट कितने लोगों को आती है? थोड़ी बहुत आ रही है। देखो, फिर तो लिटरली बता रहा हूँ, ऊपर से जाएगा। कि अगर मैं पूरा एप्लीकेशन बना के दिखाऊं, तो वो लिटरली बहुत ऊपर से जाएगा कि भैया आए, कुछ तो किया, कुछ तो कोड लिखा, और कोड की कॉपी मिल गई, हम खुश हो गए। तो मैं नहीं चाहूंगा कि भाई उस तरह से काम हो। काम इस तरह हो कि अगला सेशन हो, उस टाइम पे तुम लोग बेसिक रिएक्ट, बेसिक नोड जेएस और बेसिक ईथर जेएस के साथ इंटीग्रेशन, मतलब ईथर जेएस पढ़ लो। उससे इजी मेरे लिए ये होगा कि मैं तुम लोगों को एडवांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के इंटीग्रेट करना सिखा पाऊंगा। ठीक है, उससे फायदा तुम्ही लोगों का है कि अभी जैसे मैंने ये फेच प्राइस लिखा। हेलो, ऑडिबल? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ऑडिबल पता नहीं है, मेरे तेरा हाँ स्क्रीन शेयर सॉरी। गया, रुक जरा देखता हूँ। पता नहीं मेरे सिस्टम को क्या हुआ, अचानक से बंद हो गया। एनीवेज, तो मेरा डिस्प्ले शेयर्ड है कि नहीं है? नहीं नहीं, नहीं है डिस्प्ले सर। गया अभी, अभी कर ले। हाँ सर अभी ट्राई करो। ओके, विजिबल नाउ आई गेस, राइट? हाँ सर अभी शो हो रही है। ठीक। अभी शो हो रही है। ओके ओके, तो यही चीज मैं कह रहा था कि थोड़ा सा धीरे से अभी सीखोगे ना। मैं यहाँ पे कोड समझा देता हूँ, ये कोड समझाना इजी है। देखो, ये जो फंक्शन है, ये हमारा काम करता है कनेक्ट वॉलेट का। ठीक है, जो मेरा मेटामास्क इन्वोक करेगा। ये वो जो वाला जो फंक्शन है फेच प्राइसिंग का, ये मेरा प्राइस ओरेकल जो होता है उससे फेच करेगा। ये वाला हमारा हो गया एक, कि भैया ये कनेक्टेड है कि कनेक्टेड नहीं है। अगर नहीं है तो हर 30 सेकंड में ये प्राइसिंग फेच करके लेके आएगा मेरे लिए। एंड ये मेरा एक डैशबोर्ड है प्राइस ओरेकल का। ठीक है, अब मैं इसको एक बार कोड करके दिखा देता हूँ सिंपल तरीके से। टर्मिनल पे गए, विजिबल टर्मिनल, यस सर। हाँ सर। npx create हाइफन नेक्स्ट हाइफन ऐप, और ऐप में मैं लिख देता हूँ डेमो डैप। एक तो तरीका ये है मेरे पास, मैं सीधा गया नेक्स्ट के, देखो टाइप स्क्रिप्ट यस, ईएस लिंट फॉर नाउ मैं कर देता हूँ नो। ठीक है, मैं ईएस लिंट नहीं चाह रहा। टेलविंड सीएसएस यस, कोड डायरेक्टरी इन सोर्स यस, ऐप राउटर रिकमेंडेड यस, टर्बो पैक नो, इंपोर्ट एलियस यस। ठीक है, और एंटर। अब विद इन फ्यू सेकंड्स मेरा पूरा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, एक टेम्पलेट जिसे कहते हैं ना, वो मेरी रेडी हो गई। और एक मैं काम करता हूँ, एक, अब सिंस हम एआई यूज करते ही हैं डेली लाइफ में, तो एआई ही ले लेते हैं, है ना। क्रिएट अ ग्रीटिंग स्मार्ट मैं दे दूँ कुछ, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, मैं दे दूँ कुछ आइडिया। हाँ दो। एक काम कर लेते हैं, P2P मार्केट प्लेस बना देते हैं फॉर NFTs। पी टू पी मार्केट प्लेस अगले 20 मिनट में तो नहीं बनेगी भाई। ठीक है, ओके, सो क्रिएट अ पी टू पी स्वैप हाँ स्वैप कर ले बेटा, स्वैप इजी हो जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैंने ये लिया। अब दिमाग मेरा तो जीरो लगेगा यहाँ पे, बट या स्टिल आई कैन एक्सप्लेन यू गाइस। ठीक है, हम्म, हो रहा है, देखो, इसलिए कह रहा हूँ जॉब खतरे में। फ्रंट एंड भी आ गया मेरा। ठीक है, देखो डन। तो अब ये क्या है, फी भी जो है 0.1% फी एडजस्टेबल बाय ओनर वो हमारे पास आ सकते हैं, दैट्स द थिंग। अब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट मैंने कॉपी किया, मैं जाऊंगा सबसे अच्छे एप्लीकेशन पे कॉल्ड रिमिक्स।
रिमिक्स कौन सा वाला, ये वाला। उफ, ठीक है। अब इसमें जाएंगे हम कॉन्ट्रैक्ट वाले फोल्डर में। ठीक है, इसमें एक फाइल बनाएंगे हम p2p.sol। ठीक है, p2p सोल हो गया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ओके करा। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि 8 पर है। अब हम इस पे कंपाइलर पे गए, कंपाइल p2p सोल। अब इस पे कोई एरर आया, आस्क एआई, अगेन एआई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये हम बोलेंगे कि भैया खुद ही फिक्स कर दो, ये अपने आप को फिक्स कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये आ गया इनका पूरा फंक्शन, या कॉपी किया हमने और यहाँ से हमने ये वाला फंक्शन था उसको रिप्लेस मार दिया, डन। कंपाइल, कंपाइल हो गया, बहुत इजी था, राइट। अब कंपाइल तो हो गया। कंपाइल के बाद हम जाएंगे यहाँ पे। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मैं रिमिक्स के अंदर ही जो हमारा है वॉलेट, उसमें हम लोग को 100 ईथर मिलते हैं, बट ये किसी चेन से कनेक्टेड नहीं होते, तो हम लोग इसको बस डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये मेरा डिप्लॉयमेंट डन हो गया और मेरे सारे फंक्शंस आ गए यहाँ पे। ठीक है, फी हो गया, गेट ऑर्डर हो गया, ऑर्डर काउंट हो गया, ऑर्डर्स हो गया, ओनर कौन है, ओनर कॉल हो गई। ठीक है, बट सिंस मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में मेरे पास एक गिव अवे है। गिव अवे ये है, सब मेरा अराउंड $20 का गिव अवे है। ठीक है, हु कैन बिल्ड अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, create a sample app and deploy on this chain, okay, this chain। तो इस चेन पे डिप्लॉय करने के लिए दो ही चीजें चाहिए आपको, कि आपको यहाँ जाना है नेटवर्क पे, प्रोटोजम्बो फॉसेट। ये फॉसेट के लिए आपको यहाँ पे जाना है अपने मेटामास्क में। और सिंस मेरे पास पड़ा हुआ है थोड़ा सा टेस्टनेट का, देखो प्रोटोजम्बो टेस्टनेट, या तो मेरे पास ये है। कॉपी करना है, यहाँ पे जाना है, पेस्ट मारा, सेंड मी एनएफटीसी, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। मेरे पास एक JNFTC आ जाएगा, ये आगे 103 हो गए। ठीक है, अब यही जो मेरे पास 103 हुए, अब मेरे को ये यूज होंगे कहाँ पर, ये यूज होंगे मेरे यहाँ पे। अब यहाँ पे जाना है, इंजेक्टेड प्रोवाइडर पे क्लिक करना है, मेटामास्क। अब यहाँ पे 105 आ रहा है। ठीक है, और ये वाला भी मैं करता हूँ कैंसिल, और मैंने इसको करा डिप्लॉय, सेंड ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे मेरे वॉलेट एड्रेस से इतनी फीस कट रही है, कंफर्म। एंड इसमें कुछ तो गलती हुई, इसमें गलती क्या हुई वो देख लेते हैं। इसीलिए नई चेन पसंद नहीं है। ये कह रहा है ट्रांजेक्शन माइंड बट एग्जीक्यूशन फेल्ड। तो इसमें कुछ नहीं करना, कस्टम पे जाना है, यहाँ पे जाके इसको साथ कर देना है, डिप्लॉय, सेंड ट्रांजेक्शन, कंफर्म। भाई क्या दिक्कत है? एक काम करते हैं, इसमें एक चीज़ और है, दैट इज द एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। और सॉलिडिटी हो गया, EVM वर्जन तुम्हारा, ये भी ठीक है, यूज कर, यही वाला करना है। दिस, वो कहाँ गया, एस्टिमेट के, एस्टिमेट गैस करके देख एक बार, ये अरे भी नहीं नया एस्टिमेट चीज गैस से, है। अरे नहीं उससे नहीं है, EVM उससे मेरे को दिक्कत है। इसका संघाई पे करना है मेरे को, प्रोवाइडर है ना ओके यार। ओके। ये, ओके, सो मतलब वर्चुअल मशीन ये कर रहा, दगा दे रहा तेरे को। हाँ वर्चुअल मशीन में वही चाहिए मेरे को, वर्चुअल मशीन चेंज करनी है। अ, देखो पता नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको एक तरीके से और कर देता हूँ उधर ना। ही है वर्चुअल मशीन, तेरे डिप्लॉय सेक्शन में ही है, तो वो कैंकन किया ना, कैंकन के पे ही नीचे था शंघाई। अरे यार, यार डिप्लॉय एंड रन ये रहा, गैस एस्टिमेशन, गैस ऑटो ले ली, वही ऑटो है। यहाँ पर है कंपाइलर। ओके, कंपाइलर वाला इशू था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंपाइलर ले रहे हैं हाँ, 8 और 8 डेट। और वो हाँ तो ये बने। रहा, अब होगा ठीक टाइम। कंपाइलर चेंज किया पूरा, एक कोड चेंज करना पड़ेगा वापस तेरे को, ये होगा। फक मैन, 8.20,
हम भी 20 ले लेते हैं इसको, कंपाइल, डन। ठीक है, हाँ, डिप्लॉय रन कस्टम, डिप्लॉय, सेंड ट्रांजेक्शन, कंफर्म। हद है यार, कह रहे थे एरर ही तो नहीं है इसमें, एरर तो सेम ही है। ये रहा ना। ट्रांजेक्शन इसी माइन हो रहा है, तेरा तेरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट देखो यार, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, मैं इसको एक काम करके दिखाऊं। मैं इसको साले को टेस्ट नेट टेस्ट सफोलिया। इसके सेफोलिया वगैरह पे ले, या फिर तू अरे ट्रफल पे कर, लेकिन वो रन हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, एक मिनट रुको, दोबारा से करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास सफोलिया पे हूँ, मैं सफोलिया पे मैंने डिप्लॉय मारा। सफोलिया पे एक्चुअली गैस फीस ज्यादा लगती है, और या लिटरली गैस फीस बहुत ज्यादा लग रही है। इतना क्यों लग रहा है यार, बढ़ रही है। ये लेना, पॉलीगॉन ट्राई कर ना, मुंबई नेटवर्क ट्राई कर, अगर पॉलीगॉन पे हो जाएगा तो। अरे छोड़ो, यही कर लेते हैं। देखो, मैंने डिप्लॉय मारा, ये डिप्लॉय हो गया। अब मेरे को दो चीज़ें चाहिए थी, मैंने इसको फिलहाल के लिए पिन कर लिया। अब इसमें मेरे पास फंक्शन आ गया पहले। अब मैं जब कंपाइल पे गया, यहाँ से मैंने एबीआई लिया। अभी एबीआई को मैं लूंगा और मैं जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सी डी डेमो डैप कोड डॉट, यहाँ पे गए, सोर्स के अंदर गए, एक फाइल बनाए, कॉन्स कॉन्स्टेंट, और इसके अंदर लिख दिया हमने ABI.TS और ABI.JSON। जेसन में मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, मेरा छोटा सा ये बन गया एक ABI। और अब मेरे को इसका एक चीज़ और चाहिए था, दैट इज द एड्रेस, और ये एड्रेस मेरे को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब मैं गया यहाँ पे, एक मैंने फाइल बनाई .env, इसके अंदर मैंने लिख दिया ये एड्रेस, और होम पे गया, इसके अंदर लिख दिया नेक्स्ट अंडरस्कोर पब, PUBLIC पब्लिक, और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब मेरे को यहाँ पे जाना है, और ये जो हमारा सेटअप है, इसको यहाँ सहित उड़ा देना है। ठीक है, तो मैं लिख दिया डेव, ये मेरा डन, ये डन, और इसमें PNP डेव। ठीक है, नोट जेएस इंस्टॉल होना चाहिए गाइस, वरना नहीं चलेगा, ये पहले ही बता रहे हैं। एंड यू नीड टू गो ऑन द लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट पे आए तो हमारे पास एक बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ गई। अब इसमें हमारे पास एक चीज था, दैट इज द दिस थिंग। अब इसी में हमें फ्रंट एंड मिला था। ठीक है, प्रॉपर ये वाला फ्रंट एंड मिला था। अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ यही कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ गए। अब इन्होंने क्या किया, ये यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, एंड इसमें एक छोटी सी चीज करी हमने, ये लिया, ये रिएक्ट यहाँ पे आ गया। अब बाकी चीज़ों के लिए हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे गए, यहाँ गए, ऐड CN इंस्टॉलेशन नेक्स्ट PNPM, यहाँ गए, यहाँ पे एक और ओपन किया, ये लिखा, एंटर मारा। ठीक है, एंड ये डिफॉल्ट न्यूट्रल, यस, यूज फोर्स। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई। अब इसमें मेरे को सिंपल सा चाहिए, एक तो कार्ड,
कार्ड पे गए, यहाँ आए, यहाँ पे पिन किया, यहाँ आए, यहाँ पे मैंने किया टैब्स लिखा एंड एंटर मार दिया। ठीक है, डन। मेरे कार्ड सर ये आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इसको सीधा इंपोर्ट मार लूंगा कार्ड से। ठीक है, सेम कार्ड से मारने के बजाय मैं यहाँ पे गया और मैंने ये यहाँ से कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसमें दो चीजें रह गई, दैट इज BUTTON एंड INPUT, इनपुट। डन। ठीक है, इसमें भी लेगेसी लिया, डन। ठीक है, अब जो हमारा जो ये चल नहीं रहा था, अब ये बिल्कुल सही हो गया और ये चलने लगा। टड़ा, अब मैं आ गए लोकल होस्ट पे। ओके, अब देखो एक छोटा सा इशू आ रहा है, वो भी अब रिजॉल्व कर देते हैं। दैट इज द दिस थिंग क्लाइंट। ठीक है, एंड वी हैव दिस। ठीक है, क्रिएट ऑर्डर, एग्जीक्यूट ऑर्डर। अब अमाउंट टोकन सेल, अमाउंट टू सेल, बाय टोकन एंड अमाउंट टू बाय, क्रिएट ऑर्डर। ठीक है, अब इसको तुम्हें डीबग करके भी दिखाते हैं, डीबगिंग में कैसे दिखता है, ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। तो वापस कोड में जाएंगे। अब यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है, देखो ये जो फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें मेरे को जो इसने क्या करा, मेरे को फ्रंट एंड बना के दे दिया, बट connect wallet is missing and the function to call for the swap। ठीक है, अब ये मेरे को दोबारा से दूसरा बना के दे रहा है एंड ये API वगैरह कॉल कर रहा है, ERC का, P2P स्वैप का एंड तुम्हारा ये रहा। ठीक है, कनेक्ट वॉलेट का बटन एक ये रहा, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ गए, हम चाहे तो इसी के अंदर ही इसे कॉल कर लेते हैं या इसको अलग से ही कॉल करते हैं, कट पेस्ट। ठीक है, अब सेट प्रोवाइडर और ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी तुम्हारी, देखो ईथर से आएगा, ये रहा कॉपी, इसको पेस्ट, npm add ethers, ethers। ठीक है, ethers एक लाइब्रेरी है, इट कम विद द web3.js। ठीक है, ethers from ethers। ईथर्स इंपोर्ट नहीं हुआ है तनिष्क। अरे हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ भाई, कर रहे हैं उनको तो, पहले डाउनलोड तो हो जाए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है ना, import ethers from ethers। ठीक है, अब ये प्रोवाइडर्स, यार इसीलिए गुस्सा आती है। ठीक है, अब ये मेरे से कह रहा है कि मेरे को पूरा कॉल कर लो, कॉपी कर लो और मैं पूरा पेस्ट कर दूँ। इसने तो मेरे से यही कहा, ethers डॉट यूटिल्स रिएक्ट। ठीक है, आई होप इतना ये चल रहा है अभी। ओके, व्हाट इज इट सेइंग, इट इज सेइंग कि भैया मेरा PNPM उड़ चुका है। सर्वर बंद करते हैं, दोबारा शुरू करते हैं। देखो, डैप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, वेब इज इजी इन कंपैरिजन टू डैप, ट्रस्ट में गाइस। तुम कितना ही AI यूज कर लो, कितना ही कुछ कर लो, मैं ये चीज तुमको एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट से भी सिखा देता था, जिसमें तुम्हें 4 टोकन मिंट करने हैं। ठीक है, तुम्हारा मिंट हुआ और यू आर गुड टू गो। अब ये देखो, अब ये मेरे से कह रहा है Web3 प्रोवाइडर नहीं मिल रहा है इसको, हद है यार।
ठीक है उसने देखो। सिर्फ तेरा वॉलेट फंक्शन बना दिया उसने कि वो कोई भी वॉलेट को डाला ही नहीं है मेटामास्क अरे में नहीं तो नहीं, मेरे को ये रहा ना, प्रूफ ही नहीं किया ये रहा ना, कहाँ पे ये रहा ना, देखो सिर्फ बच्चों। प्रोवाइडर इथीरियम ये है। हाँ इथेरियम, हाँ इथेरियम का निकाल रहा है ना यार। तो इसको हाँ दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ये विंडो, देख एक तो ये है ना, इथेरियम को विंडो डॉट इथेरियम लेते हैं ना, हाँ विंडो हम्म, डॉट इथेरियम, विंडो डॉट इथेरियम। अब इथेरियम को एग्जिस्टिंग नहीं मान रहा है, हद है यार। सब ठीक है, इंटरफेस हमारा यहाँ पे बन गया। अरे इथेरियम अब ले लिया इसने। अब इथेरियम ऐसे नहीं लेगा, अब ये लेगा तुम्हारा हमेशा इस तरह से कॉपी, विंडो डॉट इथेरियम, ईथर से प्रोवाइडर्स। तो अगर मैं इसमें कहूँ कि मेरे को ये प्रोवाइडर चाहिए ही नहीं, ठीक है, और मेरे को ये डायरेक्टली फंक्शन से लेना है, तो कॉन्स्ट प्रोवाइडर इक्वल्स टू न्यू ईथर्स डॉट यूटिल्स है यार, देख लो। ईथर्स डॉट यू कहाँ गया? ईथर्स में चेंजेस हुए हैं क्या? ईथर्स डॉट इथेरियम, मेरा ना, ईथर डॉट प्रोवाइडर, PRO, हो गया। तो इसको ये इस तरह से ले रहा है, ईथर्स डॉट एल्कमी, एल्कमी से ले लेते हैं, एल्कमी प्रोवाइडर डॉट मेन नेट। ठीक है, ये इस तरह से ले रहा है, इन्होंने चेंज कर दिया। तो मेन नेट की जगह मेरे को लेना है एस सपोली, SEPHOLIA, ये SEPOLIA। ठीक है, अब ये ले लेगा मेरा यहाँ से, यहाँ पे गए कनेक्ट वॉलेट। अब ये मेरा डायरेक्टली इसने कनेक्ट ले लिया यहाँ से। ठीक है, ये एड्रेस मेरा यहाँ पे था 030, लास्ट में 288 288। ठीक है, तो ये सीधा इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाली चीज़ चेंज करनी है हमको। ये चीज़ चेंज कैसे होंगी? अब यहाँ पे आया तुम्हारा कॉस्ट P2P स्वैप ABI, और तुम्हारा ये ERC20 ABI। दो तरीके थे कि भाई या तो तुम इस तरह से ले लो, नहीं तो तुमने ABI तो बनाई रखी है, ठीक है, ये वाली। अब इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे अपने आप में, क्योंकि जनरली हम लोग काम इसी तरह से करते हैं, इस तरह से तो नहीं करते हैं। तो अब हम इसको करेंगे इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट ABI फ्रॉम कॉन्स्टेंट डन ABI डॉट जेसन। ठीक है, और एक काम और कर लेते हैं, इसको हम लोग करा लेते हैं फंक्शन के अंदर, कंसोल डॉट लॉग कॉन्ट्रैक्ट ABI। तो अब मेरे को क्या मिलेगा, कम से कम ये मेरे को फंक्शंस मिले 19। अब देखो इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, क्रिएट ऑर्डर, और काफी सारे फंक्शन है जो इसके अंदर है। ठीक है, अब मेरे को जो भी फंक्शन मेरे को चाहिए, मैं उसको यूज करूंगा। और मैं कैसे यूज करूंगा, देखो नेम ये रहा, स्टेट ये रहा, एंड फंक्शन टाइप है इसका फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन है वो फंक्शन की तरह आएंगे, जो इवेंट है वो इवेंट की तरह आएंगे। अब मैंने कैंसिल क्रिएट तो कर दिया ऑर्डर, मेरे को कैंसिल भी करना है, तो ये उसके हिसाब से बने हुए हैं। ठीक है guys? अब देखते हैं सेल एड्रेस, सेल अमाउंट वाला किस किस के अंदर इनपुट में है। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट कैसे पता चलता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? ठीक है, ये बहुत शॉर्टकट है, वरना तुम लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे देखो, इंटरनल टाइप यूनिट ऑर्डर आईडी, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर आईडी, मेरा ये फंक्शन किसी काम का नहीं है, जीरो वाला आईडी कोई काम का नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो एड्रेस आ रहा है, एक तो टोकन टू सेल, टोकन टू सेल एड्रेस। ठीक है, एड्रेस चाहिए, टोकन टू बाय का एड्रेस हो गया, एंड अमाउंट टू सेल, अमाउंट टू सेल हो गया, अमाउंट टू बाय, यानी कि मेरा ये है क्रिएट ऑर्डर वाला फंक्शन। ठीक है, हम लोग ABI से अब यही वाला और फंक्शन उठाएंगे। अब ABI से कैसे उठाते हैं, किसी को पता है? देखो ओके, नहीं पता कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको बंद, यहाँ लिखते हैं प्रोसेस डॉट ENV डॉट नेक्स्ट।
एंड मैं गया वापस ENV के अंदर, मैंने लिया कॉपी और मैं गया यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, इसके बाद हमने एक ये लगा दिया और हम लोग एक बार और एक चीज लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको ग्लोबल करना है मेरे को पहले तो, कट पेस्ट। ठीक है, console.log P2P स्वैप एड्रेस, ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है लाइफ में, ये भी देख लेते हैं। तो लाइफ में मेरे ये वाला एड्रेस पे रीड हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसकी एक बनाएंगे यूटिल फाइल। ठीक है, वो यूटिल फाइल कैसे बनाते हैं, वो ये देखो, यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर, यहाँ पे एड्रेस आ गया, ABI आ गई, और यहाँ पे साइनर आ गया। साइनर्स में कौन हूँ, जो मेरा एड्रेस है। ठीक है, मैं ही एड्रेस हूँ। टोकन कॉन्ट्रैक्ट में सेल टोकन इज ERC दिस एंड साइनर अगेन मैं, ट्रांजेक्शन वेरी एंड दिस थिंग यहाँ पे। अब ये कह रहा है ethers डॉट यूटिल्स, ओके इट्स नॉट वर्किंग, वेट, ethers डॉट यूटिल्स, यार इन्होंने चेंज कर दिया लग रहा है। एक मिनट, इसका है ethers डॉट कॉन्ट्रैक्ट डॉट, एक सेकंड यार, एक काम करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं एक बार। गाइस बोर तो नहीं हो रहा कोई, क्योंकि दिस इज द फकिंग डेवलपमेंट पार्ट। नहीं नहीं भाई, करते जाओ तुम। मैं तो देख रहा हूँ भाई। बढ़िया। वाग्मी भाई सबसे बढ़िया यही चीज है मेरे लिए। इंस्टॉलेशन पे गए और हमने ये लिया कॉपी, कॉपीड, यहाँ गए, टड़ा, तूने फंसा दिया मेरे को वेदांश। ठीक है भाई, फंस जा। अच्छा खासा छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था। लाइक ये तो सॉल्व करने तो करते हैं, कोई सीन नहीं है, बट अपने को रैप अप थोड़ा जल्दी करने का। हाँ वही मैं कह रहा एंड हूँ ना कि 9 बजने वाले हैं। हाँ, एंड अपन ने बेसिक UI और ये सब तो कर दिया ना। तेरा नेक्स्ट का हाँ कॉन्ट्रैक्ट पूरा रेडी है बेसिक, और वॉलेट राइट, वगैरह भी कनेक्ट कर दिया। राइट। चाहिए ना तो मैं तेरे को ये जो कोड है ना वो गिट पे डाल के तू मेरे को फॉरवर्ड कर देगा, तो मैं हम लोग के ऑफिशियल GDG के गिटअप पे भी डाल दूंगा, ठीक जिससे है, लोग देखो एक्सेस करके सीख सकते हैं। मैं इसको गेट पे पुश कर देता हूँ, एक मिनट रुको। मैं ENV तो नहीं डालूंगा, इतना तो नहीं करूंगा। ये नहीं मत डाल। ENV तो नहीं डाल रहा, ENV मैं कर दी। एंड ये इनिट कमिट, ठीक है, पब्लिश ब्रांच, पब्लिक रेपोजिटरी एंड टडा। अच्छा तो $20 की बात थी ना, $20 कौन जीतेगा? जो ये कंप्लीट करेगा वो जीतेगा। वो जीतेगा जो पहले करके ट्विटर पे पोस्ट डालेगा, टैगिंग मी, टैगिंग जंबो, क्योंकि जंबो वाले पैसे देंगे, मैं तो नहीं। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट भी इसी में ऐड कर देता हूँ, सोर्स फोल्डर में ही। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ये सही है, ये अच्छा दिमाग लगाया। कंप्लीट तो हो थैंक यू जाएगा, भाई। बट वही आधा घंटा जाए 1 घंटा जाए पता नहीं ना। इसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट, बोला ना, ये अपन ने चालू तो कर दिया, अब जिसको चाहिए $20 वो कर लेगा। हाँ ठीक है। कोई है चैलेंज, चैलेंज लेने के लिए आप यहाँ पे? कल लेने के लिए तो है, लेकिन इतना भयंकर वाला ऊपर से गया तो देख यार लो। ऊपर से देखो, इसमें ऊपर से जाने वाला कुछ है ही नहीं ना, इसमें सब कुछ तो तुम्हारा बना हुआ है। अच्छा नहीं, वो सब वो नहीं कह रहा सर, मुझे एक चीज पूछनी थी, आपने रीमिक्स खोला था ना, हाँ वो क्या है, मतलब रीमिक्स को हम क्या करते हैं? देखो, रिमिक्स पे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग लोकली टेस्ट करते हैं ना कि कैसे चलेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या क्या फंक्शंस देगा, ये फंक्शंस है हमने डिक्लेयर किए हैं। अब मेरे को टेस्टिंग करनी है कॉन्ट्रैक्ट की विदाउट हैविंग अ फ्रंट एंड, तो मेरे को ये आईडी ये सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। अब जैसे ओनर मैं हूँ, तो मैंने से कॉल करा, अब मैं ओनर बन गया। ठीक है, दिस इज द एड्रेस, यहाँ पे जो है वो ओनर है। अब
अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, देखो रिनाउंस ओनरशिप, और अब मैं इसमें देखो एक काम करता हूँ, फी कॉल कितना है, फी कॉल मेरा है 1 यूनिट, तो एक आ रहा है वैल्यू, 1% आ रहा है ना फी, ये हो गया। ऑर्डर अकाउंट कितने हैं मेरे, 0। तो दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंटरेक्ट हो रहा है। ये देखो ना, इस टाइम मैं कुछ भी करता हूँ, एक ट्रांजेक्शन इनिट होती है, ये रहा ऑर्डर अकाउंट, यहाँ पे ऑर्डर अकाउंट का एक फंक्शन कॉल हुआ ना, उसको कितना ट्रांजेक्शन किया, कॉस्ट टू अप्लाइज व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने जैसे इसमें एक काम किया, मैंने अपडेट फी कर ली, अब मेरे को अपडेट फी में मैंने लिख दिया 5। ठीक है, ये एक मेरा पोस्ट मेथड है, मैंने ट्रांजैक्ट करा, अब अपडेट फी वाला मेरा फंक्शन कॉल हुआ होगा, ये देखो अपडेट फी वाला। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ होगा, अब मेरे को दोबारा से फी चेक करनी, तो अब मेरी 5 हो गई। दिस इज अ गेट मेथड, ऑरेंज वाला है पोस्ट मेथड। अब मेरे को ऑर्डर क्रिएट करना था। ठीक है, जो यहाँ पे फंक्शन है ऑर्डर क्रिएट वाले, और सेम जो यूआई मैंने यहाँ पे बनाया है, सेम है। हेलो, यस सर। ठीक है, अब जब ये सेम है, तो अब मैं यहाँ पे जैसे टोकन टू सेल एड्रेस, तो मेरे को किसको बेचना है, मेरे को अपना वॉलेट एड्रेस दो, मैं तुमको देता हूँ। टोकन टू बाय मेरे को कौन सा खरीदना है, वो वाला। अमाउंट टू सेल मैं कितने अमाउंट पे बेचना चाहता हूँ, अमाउंट टू बाय मैं कितने पे खरीदना बेचना चाहता हूँ, वो वाली चीज मैंने प्राइस करी, मैंने ट्रांजैक्ट लिखा, और ये मेरा ऑन चेन हो गया। वही यही चीज जो इंट्रैक्शन है, सेम चीज मैं यहाँ पे भी करके दिखा रहा हूँ, सेम चीज मैं इसे फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ। जो मेरा फोकस था वो था इंटीग्रेट करके तुम लोगों को दिखाना कि ये इंटीग्रेशन पार्ट कैसे होता है। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना के तुमको दे दिया, तुम इसे चला के अपने लेवल पे देख सकते हो, बट यूजर के लेवल पे नहीं। दैट इज द डिफरेंस। आई होप समझ में आया हो। यस सर। Yes, sir. क्योंकि देखो, कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं कहूँ हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड का कॉन्ट्रैक्ट ये रहा, देखो सिंपल है। कहाँ गया ये स्टोरेज का ओनर का, देखो स्टोरेज वाला ये रहा। स्टोरेज में क्या है, यहाँ पे नंबर कि कितना स्टोर करना है, ओनर ये रहा। पहले क्या होता था ना, पहले इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट आता था ग्रीटिंग का, वो कहता था से हेलो, दैट्स इट, नथिंग मोर। मैं तुम लोग को वो बना, वो देखो सिंपल है यार। तो ये वाली चीज है, अगर मैंने ये वाला बनाया है, तो इसमें तुम्हारे पास सारी चीजें आ गई हैं कंपाइल करने के बाद ना, ये फंक्शन सारे आ गए हैं। यहाँ से तुम्हारा एड्रेस मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये रहा। एबीआई तुमने जब कंपाइल करा तब मिल गई, ये दोनों चीजें लो। Web3 JS और ईथर जेएस के साथ उसे इंटरेक्ट करो, फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करो, दैट्स द थिंग। फ्रंट एंड बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, इवन तो फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, जो डीबगिंग करके इसको फिक्स करना है। तो अब गिग यही है कि जिसने पहले कर दिया, और उसे इंस्टाग्राम पे, उसे ट्विटर पे पोस्ट करना है विद द डेमो वीडियो, छोटा सा 3-5 सेकंड का, एंड विद देयर कॉन्ट्रैक्ट, विद देयर वॉलेट एड्रेस, क्योंकि टोकन ही आएंगे $20 के, उसके बाद में बेच लेना। सिंपल सी बात है, क्योंकि बाद में फिक्सिंग वाला कोड मैं डाल दूंगा, क्योंकि अभी लिटरली 9 बज चुके हैं। ओके भाई, ये वाला कोड जो है ये गिट पुश कर दिया है दोनों। पुश पुश डन डन, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ठीक है, स्टार्ट। चलो तो मैं देख लेता हूँ गिट से, वरना मेरे को गिट पे भेज दे तो मैं मेरे इसके जीडीजी के गिट पे भी वो फोर्क कर लेता हूँ। हम्म, एंड ये लो, बाकी बाकी मैं लोगों मैं को तो दिखाता ग्रुप हूँ। पे मिल जाएगा। हाँ वो मिल जाएगा, एक सेकंड, डेमो डैप, ग्रुप पे नहीं सर। ये रहा। ठीक है, हम्म, वो लिंक ही डाल देना ग्रुप पे, बेटर रहेगा। कौन सा वाला, ये गेटअप का। वही डाला है, वही डाला है। ओके, मैं ठीक है, चेक नहीं किया, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, स्टार्ट। और इसमें मैं तुम लोगों को रिसोर्सेस और दे देता हूँ पढ़ने वाले। शीट तो नहीं दूंगा, हम्म, शीट के लिए सॉरी गाइस, क्योंकि वो बहुत मेहनत से बनाई है, अभी तो नहीं ठीक है दूंगा। भाई। ठीक है, ठीक है भाई। बाद में दूंगा, वंस लाइक मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तब। उसके पहले मैं तुम लोगों को एक नोशन दे सकता हूँ, नोशन है मेरे पास। एक सेकंड, कंट्रोल एच, कहाँ गया, नोशन नोशन, ये इनका भी नोशन अच्छा है। ठीक है, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिएक्ट, दिस नेक्स्ट जेएस एंड ब्लॉकचेन। तो ये तुम लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाएगा, सॉलिडिटी फॉर बिगनर्स। ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग फॉर यू गाइस। मेरे पास मेरा वाला भी एक रोड मैप वाला भी है, वो मैं थोड़ी देर में ढूंढ के देता हूँ, मेरे पास अभी ये वाला अवेलेबल था, तो दैट्स द थिंग। ठीक है,
मैंने डाल दिया बेसिक रोड मैप ब्लॉकचेन का, मैंने ग्रुप पे डाल दिया। वो जो रोड मैप डॉट एस एच वाला है ना, वो दिमाग खराब करता है। ठीक है, ठीक है। लिटरली दिमाग खराब करता है, क्योंकि देखो रोड मैप डॉट एस एच में क्या है। अगर मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे ब्लॉकचेन, देखो ब्लॉकचेन ये रहा। ठीक है, तुमने गो करो रोड मैप, देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ गया। तुमने कौन सा डाला है? ब्लॉकचेन का ही डाला बेसिक्स। ओके ठीक। ब्लॉकचेन वाले में अब इसमें दिक्कत क्या है ना, कि बच्चे को एकदम से, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने भी इसी से स्टार्ट किया था कि भाई रोड मैप नहीं मिल रहा, लो इसी को देख लेता हूँ। जब मैंने देखा कि भाई इसमें क्या क्या चाहिए, और जब मैं इसको चेकआउट करता था ना, अच्छा व्हाट इज ब्लॉकचेन आता है, डिसेंट्रलाइजेशन पता है, वाइट मेटर्स पता है, डन। स्टोरेज कैसे करते हैं पता है, डन। इसमें सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे वो चीज नहीं मिलती जो हमें एग्जैक्टली चाहिए। अभी टीवीएम बेस्ड, ईवीएम बेस्ड क्या होता है, किसी को नहीं समझ में आ रहा। L2 L3, वाई L1 चेन्स आर बिकमिंग L2, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसको अलग करने की वजह से ही हम लोग छोटे छोटे बनाते हैं। ठीक है, अभी जैसे गिटहब है, गिटहब जिसको आता है ठीक है, गिटलैब बिट बकेट नहीं बताने की जरूरत है स्टार्टिंग में। ठीक है, वो वाली चीज है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ईथर जेस कर लो, वेब3 जेस कर लो, मोरालिस हटा दो, मोरालिस की जरूरत नहीं है। डीफाई में एप्लीकेशन बाद में चले जाना। नोड एज अ सर्विस में एल्कमी यूज करो, नोड एज ज्यादा ए बढ़िया सर्विस कर लो। है ना, नोड एज अ सर्विस यूज कर लो। एंड इथेरियम 2.0 हमने पहले बात कर लिया। जी के सिंक और जीरो नॉलेज प्रूफ, इसकी मैं बाद में अगले सेशन अगर कभी लेता बाद हूँ में, अभी जरूरत नहीं, अभी हैवी हो जाएगा वो। उसमें बताते हैं, बहुत हैवी हो जाएगा वरना। डिसेंट्रलाइज ये हो चुका, फॉसेट मैंने तुम लोग को बता दिया, क्रिप्टो वॉलेट्स हो चुका, ERC टोकन्स हो चुके, अपग्रेड्स नहीं जरूरत है अभी, मॉनिटरिंग डिप्लॉयमेंट करना इजी है। कर आईडीज क्या होते हैं वो मैंने तुम दिखा दिया। सॉलिडिटी का एग्जांपल हो गया। क्रिप्टोग्राफी SHA वाली चीज हो गई, कंसेशंस प्रोटोकॉल बता चुके हैं। देखो ऊपर ऊपर से मोस्टली मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं इसके अकॉर्डिंग। हम्म। ठीक है, अब फाइनल पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है? अपार्ट फ्रॉम द वो डेवलपमेंट वाला भी हो चुका है, बट उसमें थोड़ा सा बग्स आ रहे हैं, वो डिबग करना है। तो कोई बताएगा, कोई डाउट्स किसी को, कुछ फीडबैक, एनीथिंग? मजा आया, बेकार लगा? मजा इंफॉर्मेटिव आया था। तो भी बता दो भाई। हाँ, मजा नहीं आया तो भी बता दो, अगला सेशन में जब भी लूंगा किसी और के साथ तो थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे। मजा आ गया। मजा आया। मजा आया था सर, इंफॉर्मेटिव भी था जरा। ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा नई बात सीखने भी मिली थी। नोड जेएस के हम्म। बारे में आपने थोड़ा कहा था, हम्म। और उसके बाद हैश के बारे में आपने एक्सप्लेन किया, ये ऐसे कंसेप्ट रहते हैं। हम्म। देखो मजा जब भी इतना ही। आता है जब जब चीजों को विजुअलाइज करके पढ़ पाओ, है ना। सर मुझे एक मानो चीज तो हाँ पूछनी क्या ध्रुव? सर, एक चीज पूछनी थी। जैसे हम वेब 3 का, वैसे एक ब्लॉकचेन का यूज केस है। जैसे ये वेब 3 ऐसा होता है कि वेब 3 के अंदर जो डाटा होता है वो इम्यूटेबल हाँ, होता है। हम उससे कुछ, तो अब कोई भी ऐप बनाए जो उसमें डाटा इम्यूटेबल रहे, जैसे हमें एक अटेंडेंस सिस्टम बनाना है, तो कोई उसे हाँ, अटेंड करा रहा है और बाद में कोई हैकर से हैक ना कर पाए, तो उसको भी हम अगर वेब 3 के एक्सेस बनाए तो भी बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। उसमें क्या है, देखो अटेंडेंस सिस्टम में क्या है, अभी जैसे मैंने तुमको दिखाया ना। हम्म। ठीक है, अटेंडेंस सिस्टम में क्या, तो मार्क प्रेजेंट करना है, एब्सेंट करना है, दो चीजें करनी है स्टूडेंट को। स्टूडेंट का डेटा है, उसका आईडी मिल गया तुमको, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें उसे प्रेजेंट एब्सेंट करना है, दो फंक्शन बना दिए तुमने, हो गया काम तुम्हारा। तो फिर ऐसा होगा कि जैसे ये सब चीजें बन रखी है क्या पहले भी? मुझे ये सब पूछना है कि यार क्या ब्लॉकचेन में कितना काम हो रहा है, पहले वेब 3 में कितना काम हो रहा है, किस किस चीज में हो रहा है, किस किस चीज में अभी तक नहीं हुआ, चालू भी नहीं हुआ है? यार, देखो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीजें बनाई है, ठीक है, हम्म। बट जो इंडस्ट्री जो इस समय चाह रही है वो पैसा बनाना चाह रही है, तो वो डीफाई की तरफ ज्यादा है। डीफाई लैंडिंग प्रोटोकॉल्स, और तुम्हारे जहाँ पे उनका पैसा एक रात में डबल हो सकता है, वो वहां के साइड फोकस है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे दे आर फोकसिंग, बट नॉट एट दैट मच जितना उन्हें करना चाहिए। ठीक है, ओके। दैट्स द थिंग, कि अगर मैं आज कहूँ कि भाई मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ जिसमें जो गैस फीस है वो कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी, वो नहीं मानेंगे। ठीक है, वो चाहेंगे कि भाई यूजर आए, उनका टोकन खरीदे और उसको ट्रेड करे, उसका यूज करे। एवरीवन इज वांटिंग दैट थिंग राइट नाउ। दिस इज चेंजिंग इन अ ग्रेटर वे, बट या इट विल टेक टाइम, क्योंकि अभी ब्लॉकचेन ना नई नई हाथ में लगी है सबके, ट्रेंड में आई है।
दैट्स द थिंग। ओके सर। बाकी पढ़ो, कहीं कुछ समझ में नहीं आता टैग करो, पूछ लो पर्सनली आके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, किसी को डेवऑप्स आता हो अच्छे से और वो जॉब ढूंढ रहा हो, इंटर्नशिप ढूंढ रहा हो, अपना रिज्यूमे HR एट मेरे को भेज देगा, पर्सनली भेज देना, डेवऑप्स वाले बंदे। वी आर हायरिंग समवेयर अराउंड 5 डेवऑप्स इंजीनियर्स, ठीक है, और इंटर्न्स, तो हम लोग को चाहिए, ठीक है गाइस। डेवरेल या वेदांश, फिर प्रोडक्ट के लिए कुछ है? किसके लिए? डेवरेल या फिर प्रोडक्ट? डेवरल, यस डेवरल के लिए है। प्रोडक्ट में क्या करना है तुमको बताओ। अरे मैं एक्चुअल दोनों में हूँ अच्छा, सो दैट्स व्हाई मैं खुद पूछ लिया कि कुछ रहेगा तो पता है, क्योंकि प्रोडक्ट में लास्ट टाइम मैंने जो इंटर्नशिप की थी दैट वाज विद क्यूबेन करके एक वेब3 कंपनी थी, सो लाइक ना ट्रैक रिकॉर्ड भी वेब3 का ही रहा है, दे वर इनटू इंश्योरेंस थिंग। क्यूबेन का जो फाउंडर है, जितेश। जो उनके, जितेश, जो उनकी ब्लॉकचेन है, दे ऑफर्ड मी फर्स्ट कि उनका आर्किटेक्चर मैं बना दूं, बट मेरे पास टाइम बैंडविड्थ नहीं था, मैंने मना कर दिया था, ठीक है। मैं आई था डोंट, उनके, कब ऑफर किया था तुम लोग तेरे को? मेरे अपन को बाद में बात करते हैं, आफ्टर आफ्टर मीट कनेक्ट करते हैं, ये मीट ऑफिशियल है। सॉरी। ठीक है, एनीवेज, ओके, बाय बाय, गुड नाइट गाइस। Yeah, thank you everyone. Thank you, थैंक यू सर। Kanish, for sharing some great stuff. Okay, हम्म। चलो, that's it. किसी को कुछ पूछना है नहीं सर। और कोई ऑफर है क्या? ठीक है, और ऑफर फुल, यार तो है तो बहुत कैंसिल। सारे ऑफर्स, पहले एक एक सुन करके सुन निपटा ले। कनिश, हाँ, सुनना, इन लोगों को पहले गेटअप का डिबगिंग करने दे, फिर उसके बाद ऑफर्स पे बात करते हैं बस। अरे हाँ, एक और चीज, जो अच्छे से कर लिया ना, उसका इंटरव्यू वाला राउंड मैं लूंगा। प्राइसिंग भी है, दोनों चीजें हैं, कैंपेन चल रहा है, एक्टिव है। मेरे को कल शाम तक करके दिखाओ, 9 बजे तक, 24 घंटे का विंडो है, चलो, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस। चलो, बाय बाय एवरीवन, आई होप मजा आया होगा। बाय बाय, बाय बाय। बाय। कैन यू स्टॉप द रिकॉर्डिंग प्लीज? सिद्धेश्वर, रेकॉर्डिंग स्टॉप करू शकतोस तू. तू अशी आहेस ना मीटवर?